Please. Abir Baba Cricket as openers. All eyes on Ketan Matre and Rajat Kudakar. The man in form, Rajat Kudakar, scoring the first half century of the tournament. 57 runs knock. That fetched him the Player of the Match award. Here comes the two openers, Rajat Kudakar and Ketan Matre, the icon player for Abir Baba Cricketers Bardes. Yes, both the umpires in readiness as well. Siddesh Harmalkar and Sir Rajendra Dabholkar, the two officials, to officiate this last match of day 2. Siddesh Harmalkar will be at the bowler's end, whereas at the striking end you will have Sir Rajendra Dabholkar. $3,000 people joining us in the live streaming. Kindly subscribe. Just 700 subscribers away from 21 lakh. Do follow tenniscricket.in. First ball. Pulled away by Ketan Matre as he gets off the mark of the very first delivery. केतन मात्रे का माइंड सेट देखिए, एक्शन रिप्ले टेरिस क्रिकेट डॉट इन पर। और घर में आपकी टीवी सीट होना चाहिए, घर में आपकी सोफा सीट होना चाहिए। आप प्रारंभिक बल्लेबाज है तो आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक खेल दिया और वो फॉर्म में है, वो बताते हैं इस प्रतियोगिता में। Yes, Prashant sir, if you look at the bowling attack from Anurag Sarsat, what he has done, Anurag Sarsat, he has maintained the ball outside the off stump. And on the last occasion, it was on the leg stump, which was easily dealt away for a boundary. हिंदुस्तान के किसी भी बल्लेबाज को आप पैरों पर गेंदबाजी करेंगे ना तो रन तो बनने वाले हैं, और वही हुआ केतन के साथ। एक गेंद बहुत कमजोर थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक का बल्लेबाज केतन का। उसके बाद में कमबैक किया, ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लाइन अनुराग की। Gets the elevation and gets a boundary as well. Second boundary of the over.
Wonderful start here for Abir Baba Cricketers Bardes. Ketan Matre has already got a good start. तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर, तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर. आणि हा हेलिकॉप्टर शॉट होता, तो खरं तर ऑनसाईडला जातो, पण आता केतनचा हेलिकॉप्टर मिडापच्या डोक्यावर उडालाय. अतिशय सुंदर फटका, 4 धाबा, कडक शॉट, कडकडीत फटका. Take on the full, and here comes the wicket. Excellent catch here by Nagbhushan Gaukar. Just the lone fielder on the onside. And how unlucky can Ketan Matre be finding the lone fielder? He still cannot believe it. He's just having a big look at the big screen. What is there on? It was a full toss delivery, but he could just find a fielder at the square leg. He got off to a good start though. Certainly looking like he would play a long inning, but when luck is not in your favor, nobody can help you. I still remember how unlucky Darshan Bandekar was in the last season, 6th season. He tried to put his bat in the crease, but the bat went at the border of the crease and his hand slipped over the handle and couldn't drag the bat in the crease, and he was run out in the semi-final in Mandrem Champions Trophy last season. क्रिकेट के खेल में टैलेंट तो आपके पास होना चाहिए, उसके साथ भाग्य का भी होना बहुत जरूरी. फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन गेंद कहाँ. वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल खबर की जरूरत है, आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे. Oh, beats everyone, beats the batter Punaji, beats the wicket keeper, and good stop in the flying slip region. Oh, again away going delivery, another dot ball to wrap up the first over. Completion of 1, score 8 for 1. कमबैक बहुत अच्छा किया गया सारसे द्वारा. आखिरी 2 गेंदों पर बल्लेबाज को खामोश रखा गया. इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन बैटल आपने देखा. केतन ने स्टार्ट अच्छा किया था और तुषार गेंदबाज अनुराग ने फिनिश अच्छा किया. पहले ओवर की कहानी थोड़ा सा इवेंटफुल ओवर रहा है. इस ओवर में स्कोर की बात करें तो रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर केतन मात्रे का बेशकीमती विकेट अनुराग को मिला है. Vicky Naik, who started very well, giving 4 runs and picking up a wicket in his last match in his first over, will be bowling the second over and his first over. तुषार खास करके पावर प्ले में गेंदबाजी करना वो भी कला है. आपके पास पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज चाहिए. एक ऐसा ओवर जिसमें एमसीटी ओवर सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे, वहां एक बार फिर आपके पास में स्पेशलिस्ट गेंदबाज होना चाहिए. और आखिर के ओवर, निर्णायक ओवर जो है, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने वाले स्पेशल गेंदबाज आपके पास होने चाहिए. और वो संतुलन आपके पास है और गेंदबाजी बिल्कुल उसके बाद में असरदार हो सकती है. Vicky. Rajat. Oh, great attempt. See, one batter unlucky and the other batter very lucky. Viresh, who was just included in the team, trying his stupendous effort, but couldn't hold on. You can see in the action replay on the giant screen. He timed the job to perfection. Tried his best in the second attempt, but just grasped at the last instance. उड़ता हुआ पंजाब आपने देखा है, उड़ता हुआ पंजाब आपने देखा है, लेकिन वीरेश को देखिए क्या एफर्ट. और उनको मालूम है रजत जैसे खिलाड़ी है बहुत डेंजरस है, उनका विकेट प्राप्त करने के लिए इस तरह का एफर्ट करने की जरूरत है. तो एफर्ट कमाल का था, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी. Yes, one batter lucky, other batter unlucky. Ketan Matre, luck not in favor, and very lucky this time Rajat to still be present at the crease. That is the luck factor we were talking about.
A sigh of relief for Abir Baba. Steers the ball. Waiting is the call. Suddenly, two explosive batters at the center, and both are looking silent. तुषार, जब आखिरी मुकाबला आज के दिन का इस रात में खेल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा प्रेशर है। फाइनल का मुकाबला जब आप खेलते तो प्रेशर होता है, लेकिन ये मैच डू और डाई वाला मैच है, तो वो थोड़ा प्रेशर महसूस करते हुए खिलाड़ी। Temperatures are also dropping. Pulls it. The ball is up in the air. Fielder running back. Fielder coming close in. And chance given to Punaji. You cannot give chance to Punaji. He is a big match player. और तुषार दूसरी बार विरेश है, इससे पहले वो कमिटमेंट कमाल की थी, अब जाकर वो थोड़ा पीछे भाग के कैच लेना था, और जब जब पीछे भागकर कैच लिया गया ना, तब तक हिस्ट्री बनी है। भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा। ये एक आखिरी मुकाबला आपको जीतना है ना, तो फील्डिंग का लेवल थोड़ा और ऊपर का होना चाहिए। सर, ज्यादातर खिलाड़ी नेचुरल लाइट में खेलने की आदत है। ये जो वीरेश अभी खेल रहे हैं वो पहला मैच खेल रहे हैं, क्योंकि सनील सावंत देसाई इंजर्ड है और आदत नहीं है फ्लड लाइट में फील्डिंग करने की। शायद वो एक कारण हो सकता है। लेकिन इतने बड़े मुकाबले में आप वजह नहीं दे सकते, आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना ही करना है, क्योंकि आखिरी मुकाबला अगर यहाँ से गलती करेंगे तो जितनी मेहनत आपने पूरे दिन में की है ना, उस मेहनत पर पानी फेर सकते हैं आप। Suddenly this team, Sikandar Super Giants, KPM, are looking very strong. They have kept the two batters very silent, very quiet at the moment. Pleasant breeze, cool climate, and also the run flow has stopped. Punaji again checking his shot. Another pace of delivery by Vicky Naik. Score just moving very slowly and steadily. 12 for 1. Oh, what a delivery on the back foot. Shy the stumps and overthrows. That single takes the score on to 13. End of 2 overs, 13 for 1. तुषार, ये दूसरा ओवर पावर प्ले में समाप्त हुआ है। पावर प्ले में टोटल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 13 ऑन द बोर्ड, 13 रन, और बल्लेबाज केतन मात्रे का बहुत ही बेस्ट कीमती विकेट अजित कुडालकर पुनाजी बीच मैदान पर है, और बहुत सारे सिंगल, कोई चौका छक्का नहीं था, लेकिन ड्रॉप कैचेस के बारे में चर्चा होगी, वीरेश के बारे में बार बार चर्चा होगी। एक बार कमाल का एफर्ट था, एक बार पीछे जाके जो कैच पकड़ने का प्रयास इतना अच्छा नहीं था, और एक बेहतरीन ओवर था गेंदबाज का। जिस तरह से विकी ने पहले मैच में प्रभावित किया था, सुंदर गेंदबाजी की थी, उसी अंदाज से पावर प्ले में विकी ने गेंद को अंदर की तरफ लेके आए, बैकफुट पर लेके गए, क्रैम्प किया बल्लेबाज को। बहुत ही सदी भी गेंदबाजी विकी द्वारा। Yes, 2 overs, 13 for 1. End of power play. The field spreading out. Somesh Dodamani, who troubled the batters with his pace. And I think Rajat, he will love a pace on. He likes the ball to come onto the bat. He will certainly like the pace on deliveries here. That is what I was talking. He likes pace on. The bowler providing the pace and ball traveling with some quicker pace. कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, रजत कुडालकर ऑन फॉर्म, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे कि स्ट्रोक का लाजवाब स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट पॉटलीलन की तरफ गेंद को खेल दिया था, और सामने घना अंधेरा है तुषार, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। रजत कुडालकर फॉर्म में खिलाड़ी है, थोड़ा शांति में क्रांति करना ये भी पसंद करते, थोड़ा शांत रहे, लेकिन उसके बाद में जब रडार में गेंद आई तब बल्लेबाज गेंदबाज को थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट बॉडी के बाहर, जहां फायर इनके बहुत सारे हैं और गेंद
बॉडी लाइन की तरफ चली गई 6 रनों के लिए। आत्मविश्वास बल्लेबाज का बढ़ता हुआ। Oh, chasing that outside the off-stump delivery and places into the gap. 6 and boundary. The crowd was silent so far, but it was a silence before the storm, and the storm has arrived. Rajat is unstoppable. तूफान आ गया मैदान के अंदर और सुंदर बल्लेबाजी। एक्शन रिप्ले देखिए, ये तो आगाज है, अंजाम में भी बाकी है। अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। रजत कुडालकर बहुत डेंजरस बल्लेबाज है और शांति में क्रांति करना इनको आता है। 2 कमाल का स्ट्रोक, एक पुल किया था, उसके बाद में गेंद को कट किया और अब जाकर टकाटक पटापट रन आ रहे बीच मैदान पर बल्लेबाज रजत कुडालकर के बल्ले से। Now 100 subscribers have added, just 600 remaining for the achievement of 21 lakh subscribers on tenniscricket.in. I think by the time the match finishes, we might achieve 21 lakh subscribers on tenniscricket.in. Oh, lovely shot taken on the full. And the ball races into the fence. Another boundary for Rajat Kudalkar. तालियों के गड़गड़ाहट देखिए, तालियों की आवाज देखिए, क्या माहौल बन गया है। शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर बैटर रजत कुडालकर द्वारा और पुल टॉस गेंद पर कमाल का स्ट्रोक, मन मचल के हो गया मोर। दर्शकों के तालियों का बढ़ गया बशोर और ये लगा शानदार फोर। रजत ऑन फायर। Yes, out of syllabus innings for spectators as well. They were waiting for big inning from Karan Ambala, but our local hero Rajat Kudalkar not disappointing the crowd. Into the covers, extra cover fielder coming, collecting the ball and a single. Score moves on to 28. How often you have seen Punaji Kalangudkar playing a second fiddle? इंटरेस्टिंग बैटल है तुषार और शुरुआत थोड़ी धीमी थी लेकिन उसके बाद में गियर चेंज किया गया रजत द्वारा। Oh, completely beaten with the pace this time. Punaji was looking to slog the ball over the onside. A red dot ball. A big over this is turning out to be. Score 28, already 15 from the over. Left alone this time, and he bowls an extra here, wide outside the off stump. In the previous match, he struggled with his deliveries outside the off stump. tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in. Slog on the onside, fielder. What a magnificent, stupendous, mind-blowing to get rid of Punaji Kalangudkar. It's Swapnesh Vedip, the safest fielder on the field, with hands like JCB buckets. तुषार मेरे मन में एक सवाल है, क्या इसकी जरूरत थी? क्योंकि एक एंड पर रन आ रहे थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रजत कर रहे थे, तो आप शांति से सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन नेचुरली पुनाजी को आपने देखा बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर खिलाड़ी है, तो बड़े स्ट्रोक के लिए चले गए और इतना अच्छा ओवर घट रहा था बल्लेबाजों के लिए, तो उस वक्त पुनाजी का विकेट, मतलब गेंदबाजों के लिए कमबैक करने का मौका। तीसरा ओवर स्कोर कुल मिलाकर टोटल 29 रन स्कोर बोर्ड पर है। आणि जे प्रेक्षक आता tenniscricket.in वरती किंवा सुरेश रैना ग्राउंड वरती ही स्पर्धा पाहतात, tenniscricket.in च्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे। 21 लाखासाठी 600 सबस्क्रायबरची आवश्यकता आता निश्चित। आता आपण एक 15 मिनिटापूर्वी जाहीर केलं होतं 700 सबस्क्रायबर, त्यापैकी 100 आता पूर्ण झाले, 600 शिल्लक आहेत। मला पूर्ण खात्री आहे मॅच संपेपर्यंत 2 रिझल्ट येतील। आजचा दिवस कोण गाजवणार आणि 21 लाखाचं अचीवमेंट एकाच वेळी अपेक्षित आहे। 3 overs, 29 for 2. 16 runs, but a big wicket of Punaji Kalangudkar.
Ajay Yadav. Both these batters batted beautifully today together, and once again joining together. The fall of wicket of Punaji Kalangutkar. What a catch it was from Swapnesh Philip to get rid of one of the best batter, Punaji Kalangutkar. Vicky into his second over, just conceding 5 runs in his first and picking up. In fact, didn't get success with the wicket. Charging down the crease, Rajat anticipating and just taking the pace off. तुषार विकी का जो ऑफ कटर है ना बहुत अच्छा है क्योंकि गेंद के ऊपर उंगलियां फिरते हैं, गेंद अंदर की तरफ आती है और उसके बाद में लेंथ बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है। जब इन्होंने देखा कि बल्लेबाज डांसिंग डाउन द विकेट आगे आ रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे खींचा गेंद को और उंगलियां फिरते हुए स्टंप के अंदर रखा, शरीर के अंदर रखा। विकी की बहुत अच्छी गेंद थी बल्लेबाज के लिए। अजय और रजत मैदान के अंदर हैं। Single of the first delivery in form of leg buys. Ajay facing his first delivery, as we can see the captain himself, Imran Mullah, in that long on. Has got the height and also the distance to travel. So making his intentions clear, Ajay Yadav of the very first delivery. He's not going to wait. He's just going to have a crack. Ajay, Ajay Yadav receiving the Player of the Series award at Diesel Boys Anjuna's tournament and continuing with the same form here at the Mandarim Champions Trophy. और तुषार पिछले संडे में ये कारनामा इन्होंने किया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला था। आगाज बहुत लाजवाब है। Looking for that switch hit. And well, good comeback here by Vicky. Looking at the bat, changing his stance, bowling it out of his क्रमांक arm. 2 ला सुरुवात. You need to understand the movement, the trigger movement of the batter. जी हाँ, ट्रिगर मूवमेंट और वो आप पहले करते ना, बॉल रिलीज करने से पहले वो टेलीग्राम मिल गया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी विकी द्वारा। Again, that off cutter taking the ball away from the arc of the batter. Excellently bowled. और अजय की जो बल्लेबाजी है बहुत बढ़िया प्रदर्शन अंजना में इन्होंने किया था। मैन ऑफ द सीरीज की खिलाड़ी बहुत शानदार बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी और मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करते, पुल हुक सारे शॉट इन्होंने खेले थे और गजब का प्रदर्शन रहा था उस प्रतियोगिता में। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पिछले संडे इन्होंने क्या कमाल किया था। फुल टॉस पनिश, बॉडी रन के बाहर गेंद। Yes, another dot ball. Vicky is coming back strongly. He has bowled a few dot deliveries after conceding a 6. Just pulling his length because the delivery on which the 6 was given away was slightly over pitched. Fuller land delivery driven on the onside back to the bowler. Slight misfield, couldn't stop in the follow through. Picks up a single and now overthrow. Swapnesh will be unhappy with himself. It was not on purpose, but it was a luck for the batting team. They get an extra run. Score moves on to 38, completion of 4 overs, 38 for 2. Change in voice as well. Over to Samir Pandre. और फिलहाल वो आखिरी गेंद पर ओवर थ्रो बिल्कुल जिस तरह से थ्रो किया गया था और स्टंप को गेंद लगी थी और उसके कारण रजत कुडार का स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला जो दर्शक इस वक्त cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट। जी आपका कॉम बॉक्स में दिल के गहरे से स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी।
आजच्या रजनीतील शेवटचा सामना मैदानावर रंगताना दिसतोय. काय कमाल केली यापूर्वीच्या 2 सामन्यात केपेम संघाकडनं. गोलंदाजीच्या जोरावर अक्षरशः सामना त्यांनी खेचून आणला आणि त्यानंतर मागे वळून न पाहता बलाढ्य अशा तिसवाडी क्रिकेट संघाला पराभवाची धूळ चारत पुढील फेरीमध्ये प्रवेश केला व उपांत्य फेरीचं स्वप्न आपल्या उराशी बाळगत आजच्या दिनी त्यांनी या मैदानावर प्रवेश केला होता. त्या स्वप्नाला सत्यात उतरवण्यासाठी आता मात्र संघर्ष मैदानावर हा होताना दिसतोय. चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 38 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यापूर्वीच्या सामन्याचा हिरो ठरलेला रजत कुडाळकर याही वेळी जोखीम आपल्या खांदी घेतोय. खास करून केतन मात्र स्वस्तात तंबूमध्ये परतला. मात्र त्याचे विपरीत परिणाम माझ्या कामगिरीवर मी होऊ देणार नाही. संघाला गरज आहे माझी आणि ती जबाबदारी मी माझ्या खांदी घेत चोखपणे पार पाडेन या सूत्रानुसार रजत कुडाळकर अगदी पाय रोवून खेळपट्टीवर उभा आहे. प्रशांतजी, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अनुराग. ज्या गोलंदाज अनुरागनं आपल्या वेगानं निश्चितपणे मोहित केलं आजच्या दिनी या तमाम गोवावासियांना, तो अनुराग आपल्या स्क्रीनवर येतोय. खास दिल्लीवरनं या स्पर्धेसाठी आलेला आणि निश्चितपणे आपल्या प्रभावी कामगिरीनं तो लक्षवेधी भूमिका वठवतोय. फटका हवेमध्ये विरतोय. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याची संधी. यावेळी मात्र झेल टिपला जातोय. अनुराग शार्सर बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. रजत कुडालकर जिनके ऊपर सबकी निगाहें स्टार्ट अच्छा मिला था और वो डकआउट की तरफ जा रहे हैं. और उसकी वजह देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर ये बल्लेबाज किस तरह से डकआउट की तरफ चले गए. विकी ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका और भावेश नाइक मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं. प्राइड ऑफ भावेश पवार प्राइड ऑफ भिवंडी, क्योंकि जब आप गोवा में आते हैं तो बिल्कुल बहुत सारे नाइक आप देख सकते हैं और आज बहुत सारे लाइक भी आपको मिलने वाले हैं. भावेश पवार बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए. रजत सेट बल्लेबाज थे, उनको आपने आउट किया तो आप यहां से एक बार फिर कमबैक कर सकते हैं. अनुराग की बहुत ही बेहतरीन सदी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में. अतिशय भेदक अशी गोलंदाजी, आक्रमकतेला कुठेतरी भंग पावण्यास प्रवृत्त करणारी अशी गोलंदाजी अनुराग याच्या मार्फत आपण पाहतोय. महत्वपूर्ण सफलता रजत कुडाळकर बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर पदाची जागा करण्यासाठी डावखुऱ्यातचा शैलीदार अष्टपैलू खेळाडू भावेश पवार याची वर्णी लागते. हल्लीच मध्य प्रदेश येथे ती भव्य दिव्य अशी क्रिकेट स्पर्धा झाली. त्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मालिकावीर हे पारितोषिक ज्या खेळाडूच्या नावे लागलंय त्या भावेशला आपल्या नावाची जादू या मैदानावर उमटावी लागेल एवढं मात्र नक्की. सुरेख असा चेंडू वेगानं चकित केलं जात आहे. यष्ट उघड्या ठेवून निमंत्रण दिलं गेलं, ते निमंत्रण स्वीकारतोय गोलंदाज अनुराग व आपला अनुराग नावाचा निश्चितपणे झेंडा या तुयमच्या भव्य दिव्य अशा सुरेश रैना मैदानावर तो लगावताना दिसतोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता प्राप्त करत ब्रेस पूर्ण केलाय आणि भावेश पवार अगदी स्वस्तात बाद झालाय. काय घडलं होतं पहा टेनिस क्रिकेट .in वरती. अनुराग शार्सरची अतिशय दमदार कामगिरी, ऍक्शन रिप्ले आपल्याला बघायला मिळेल. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हलियन. निराश झालाय भावेश पवार, पण अनुराग शार्सकर याचा आत्मविश्वास जोडावलाय. फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल. अनुरागची गोलंदाजी पॉवरफुल. काय कामगिरी करतोय मैदानावरती. 2 गडी त्याने बाद केले आहेत. पहिला मोठा अडचण दूर केला रजतचा आणि त्यानंतर यापूर्वी जमलेली जोडी आपण बघितलं तर भावेश पवारने देखील चांगली कामगिरी केली होती. ती देखील डोकीदुखी होणार नाही याची काळजी मैदानावरती घेत असताना अनुराग शार्सर. निश्चितपणे सर, जी उपलब्धता निर्माण झाली संधीच्या स्वरूपात 50 धावांचा सामना हरता हरता जिंकून पुढील फेरीमध्ये प्रवेश केला व मजल दर मजल करत आता जे दिवा स्वप्न उराशी बाळगलं होतं उपांत्य फेरीचं, त्या स्वप्नाचा पाठलाग यशस्वी अशा सांघिक कामगिरीच्या जोरावर केपेम संघ करताना दिसतोय मैदानावर.
सुरेख असा चेंडू पायांचा वेध घेणारा सरळ विकेटच्या मधोमध या ठिकाणी आदळला जातोय डावकुऱ्याचा फलंदाज. व जी कामगिरी या मैदानावर काहीशी अधुरी वाटत होती गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातनं, ती विकेट हॅट्रिक घेण्याचा सुवर्णयोग डावकुऱ्याचा गोलंदाज अनुराग हा मैदानावर साध्य करतोय. अनुराग सारसनं जबरदस्त कामगिरी केली. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक रजतच्या नावावरती आणि स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक अनुराग सारसरच्या नावावरती आहे. तमाम गोव्याचे प्रेक्षक, सिंधुदुर्गचे प्रेक्षक अनुराग सारसरसाठी टाळ्यांचा गजर निश्चित करतील. अतिशय जबरदस्त तिकीट मारा केलाय. चौथा गडी त्याने आतापर्यंत बाद केलाय. अतिशय बहारदार अशी कामगिरी या ठिकाणी अनुराग करताना दिसतोय. संघ अडचणीत असताना या ठिकाणी जोखमीचं षटक घेण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांदी घेतोय. सुरुवातीला त्याने रजत कुडाळकरला माघारी पाठवलं, त्यानंतरच्या चेंडूवर दणका देताना माघारी पाठवलं ते भावेशला. आणि या दोन गोष्टींवर समाधान न मानता जी भूक आहे प्रतिस्पर्धी संघाला गारद करण्याची, त्या भूकेचं शांतवन सलग तिसरी सफलता प्राप्त करतोय तो गोलंदाज अनुराग. काय गोलंदाजी करतोय या मैदानावर. समीर सर आतापर्यंत त्याच्या स्पेलचा विचार केला तर त्यानं 4 शिकार केले आहेत. पहिल्यांदा बाद केलं होतं केतन म्हात्रेराम, तो मोठा अडसर दूर केला. त्यानंतर बाद केलं रजतला. त्यानंतर भावेश पवार आज जास्त वेळ टिकू शकला. मनोज वर्तक आला आणि फक्त प्रेझेंट लावून डगॅटमध्ये गेलेला आहे. 4 विकेट, 4 गडी, 4 मोहरे टिपणारा गोलंदाज, अर्थात हॅट्रिक पूर्ण करणारा गोलंदाज अनुराग सारखा. दिल्ली धमाकामध्ये खेळतो, धमाका करण्यामध्ये तो वाकबगार आहे, माहिर आहे, हे त्याने दाखवून दिलेलं आहे. मोठ्या स्पर्धांचा, व्यावसायिक स्पर्धांचा अनुभव काय व तो अनुभव पणाला लावून संघाची गरज ओळखून कामगिरी प्रत्यक्षात घडविणे म्हणजे काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तर देताना अनुराग गोलंदाजी मार्कवर. काही वेळी सुरेख असा चेंडू, सलग चौथी सफलता. काय बोलावं या गोलंदाजाच्या बाबतीत. मला वाटतं प्रेक्षक जर आता तुम्ही टाळ्या नाही वाजवल्या ना तर कधी वाजवणार आहेत. चौथा गडी बाद केला, एकूण 5 गडी. तिसरा फायपर आहे. गोव्याच्या टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. अनुराग सारसर दिल्लीहून आलाय आणि मैदानावरती फायपर पूर्ण करणारा तिसरा गोलंदाज ठरलेला आहे. पहिल्यांदा अपाली, त्यानंतर आपण बघूया दुसरी कामगिरी आमिरने केली होती आणि तिसरी कामगिरी इथे 5 गडी बाद करण्याचा मान मिळवतोय अनुराग सारसर. बहुत ही शानदार, जबरदस्त यहाँ गेंदबाजी और बल्लेबाज का सिर कढ़ाई में, गेंदबाज की 5 उंगलियां घी में. शानदार 38.6 मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय अनुराग सारसर. 38 हा आकडा बहुधा या ठिकाणी घातांक ठरताना दिसतोय. कोणी कल्पिलं होतं की 38 धावांवर 2 गडी बाद झाल्यानंतर काहीसा सुस्थितीमध्ये संघ वाटत होता आणि त्यानंतर सलगच्या 4 चेंडूंवर 4 सफलता. पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे डाव हा कोसळतोय. और केतन मात्रे का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट अनुराग सारसर को मिला था. बहुत बड़ी सफलता. उसके बाद में बल्लेबाज रजत का विकेट उन्होंने लिया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विकेट है. भावेश पवार शानदार गेंदबाजी करते विकेट प्राप्त किया. ये विकेट आप जरूर देखेंगे बिल्कुल tenniscricket.in पर वो 4 इंपॉर्टेंट विकेट, मतलब वो 5 विकेट इन्होंने लिए थे हैट्रिक के साथ. ये भी बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर थी और लाजवाब गेंदबाजी अनुराग सारसर द्वारा. इस प्रतियोगिता में समीर जी 5 विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज सफल ओव्हर है. गोव्याच्या तमाम प्रेक्षकांना मला वाटतं थंडी थोडीशी लागते, ती देखील उडून जाईल. पण इथे दिल्लीचा खेळाडू इथे आलाय, तो आलाय, त्यानं पाहिलंय, त्यानं जिंकलंय. त्याचा खेळ, त्याची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल ना तर तमाम गोवेकर अनुराग सारसरसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करतील. टाळ्यांचा गजर होईल. सरजीस, आज दुपारपासनं खेळ पाहायला प्रेक्षक आले होते. तो जिग्नेश पटेलचा खेळ पाहायला आले होते, तो करण अंबालाचा. दोन्ही खेळाडू सपशेल अपयशी ठरले. क्रिकेट रसिकांचा भ्रमनिरास हा निश्चितपणे झाला होता. मात्र खऱ्या अर्थानं या कडाक्याच्या थंडीमध्ये मायेची उबदार शाल प्रेक्षकांसाठी कोणी पांघरली असेल तर गोलंदाज अनुरागनं आपल्या आक्रमक अशा गोलंदाजीच्या जोरावर अतिशय बहारदार कामगिरी करतोय. व फलंदाजाचा बोलबाला ज्या मैदानावर चालला त्या मैदानावर गोलंदाजही वरचष्मा राखू शकतात, याचं ज्वलंत उदाहरण तो पेश करतोय. समीरची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सिमेंटची विकेट आहे, ठणठणीत विकेट आहे. आणि या ठणठणीत विकेटवरती म्हणजेच बॅट्समनसाठी नंदनवन असलेल्या विकेटवरती बॅट्समन दादागिरी करू शकतात. पण अपाली, त्यानंतर अमीर आणि आता अनुराग तिघांनी फायपर पूर्ण करून या ठिकाणी सांगितलं विकेट जरी ठणठणीत असली ना तरी आम्हाला तिखट मारा करता येऊ शकतो. तिखट मारा केलाय, त्यामुळे समोरच्या संघाची अवस्था थोडी बिकट झाली आहे.
निश्चितपणे तिखट मारानं प्रतिस्पर्धी संघाला बोथट ठरविणारी बहारणार अशी कामगिरी हे डावखुऱ्या हाताचे गोलंदाज करतायत आणि खऱ्या अर्थानं सध्याचं क्रिकेट जे फलंदाजांसाठी अनुकूल मानलं जातं त्या फलंदाजांना अनुकूल वाटणारा खेळपट्टीवर प्रतिकूल परिस्थितीला या ठिकाणी सामोरं जावं लागते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी अमृत वेर्लेकर. आक्रमकता हे बचावाचं तंत्र मानतोय. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स का मानला जातोय याची स्पष्टोक्ती देतोय व षटकारनं स्वतःचं खातं खोलत बराच वेळ जो धावफलक 38 धावांवर खोळंबला होता त्याला उभारी देताना 44 धावांवर विस्थापित होतोय. अमृत ने बहुत ही बेहतर स्ट्रोक खेला और जिसकी ज़रूरत थी, प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाला एक कमाल का स्ट्रोक का बल्लेबाज अमृत के बल्ले से और इस छक्के के मदद से अब टोटल स्कोर 45 रन स्कोर बोर्ड पर है. इंटरेस्टिंग मैच है. आखिरी मुकाबला आप आज के दिन का खेल रहे. कल अंकुर सिंह, जगत सरकार, आशिक अली, रमीज केरला से एक बार फिर ये खिलाड़ी आने वाले. जगत सरकार की अगर बात करें तो बंगाल से अंकुर सिंह एक बहुत बड़े सितारे हैं. प्रथमेश राठौर सोलापुर से आने वाले हैं और योगेश पेंटकर बाहर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी. लोकेश चौहान, रंजीत फराटे पुणे से आने वाले. तो कल भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी का खेल देखने का मौका मिलेगा. 45 धावा धावफलकावर एक मोठा फटका मारल्यानंतर सलग दुसऱ्या वेळी मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता चेंडू मैदानावर घोळवणं म्हणजे काय, एकेरी धावेने स्ट्राईक रोटेट करणं म्हणजे काय आणि आपल्या साथी असलेल्या फलंदाजला फलंदाजीची संधी देणं म्हणजे काय, या त्रिवेणी संगमाचा साक्षीदार ठरत एकेरी धाव ही निघते. सेंसिबल क्रिकेट, क्योंकि एक तरफ अमृत ने बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला था और उनको ज़्यादा मौका देने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं. अजय यादव के ऊपर भी निगाह रही है, खास करके वो 8 पर खेल रहे एक छक्के की मदद से. काबिलियत है दोनों के पास, लेकिन अंडर प्रेशर बल्लेबाजी करना आना चाहिए. 46 धावा धावफलकावर इम्रान मुल्लाचा चेंडू सुरेखरित्या टोलवला जातोय. कोणतीही संधी न देता डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पार करतोय व या 4 धावांनी सांघिक अर्धशतक हे पूर्णत्वास येते फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं. ते म्हणजे अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट संघाचं. 50 धावा धावफलकावर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. और समीर जी, इससे पहले एक बहुत बड़ा मुकाबला आपने देखा था, ज्यादा रन थे, 54 रन, कोई बड़ा टोटल नहीं था, फिर भी वो बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है. डिपेंड करना आसान नहीं था, लेकिन असंभव करना कोई इमरान से सीखे. बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा. अब जाकर लाजवाब बल्लेबाजी अमृत द्वारा कमाल की पारी खेल रहे. 8 पर बल्लेबाजी, एक कमाल का स्ट्रोक इन्होंने खेला था और ये शॉट जो था बिल्कुल अजय का था. तो अजय, अजय फलंदाज याही वेळी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. यावेळी मात्र इम्रान मुल्ला अतिशय चतुराईतेनं वैविध्यता आपल्या चेंडूमध्ये आणतोय आणि त्या वैविध्यतेनं मोठ्या फटक्याच्या आक्रमकतेला कुठेतरी लगाम हा घातला जातोय. ये बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा. सुरेख असा फटका कोणतीही संधी न देता समोर टोलविला जातोय. प्रतीक्षा पंचांच्या निर्णयाची आणि बहुधा विचार मंथन करत चेंडू हा चौकारासाठी गेलाय यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. 4 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी अजयच्या खाती जमा होत आहेत आणि या चौकारानं आता मात्र धावफलक पुढे सरकतोय तो 54 धावांवर. शेवटच्या सत्रामध्ये किंवा आता शेवटचा मॅच आपण आजच्या दिवसभराचं बघतो, तिथे बरेचसे अचिव्हमेंट आपल्याला बघायला मिळतील किंवा तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहोत. पहिल्यांदा 21 लाखचा आकडा, इथे किती टार्गेट असेल त्याच्यावरती देखील नजर असेल. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. दोन्ही हा समांतर करत वाईचा इशारा येतोय तो पंचांकडनं. बराच वेळ गोलंदाजी योग्य टप्प्यावरची या मैदानावर होऊ घातली होती, मात्र अनपेक्षितरित्या अजय आक्रमकतेनं प्रतिस्पर्धी संघाच्या कर्णधाराला विचार मंथन करण्यास प्रवृत्त करतोय. काहीतरी वेगळं करण्यासाठी त्याला निश्चितपणे या ठिकाणी मैदानावर प्रवृत्त केलं जात आहे आणि त्यामुळे चेंडू वाईड म्हणून घोषित हा केला जातोय. पंचावन्न धावा धावफलकावर. पंचांनी निर्णय दिलाय, त्या निर्णयाविरुद्ध काहीशा उशिरानं का होईना दाद दिली जाते, दाद मागितली जाते आणि तिसऱ्या पंचांच्या दालनात अखेर निर्णय हा येतोय. समीरजी, आतापर्यंत या ठिकाणी या क्रिकेटच्या खेळामध्ये रेकॉर्ड झाले. अपाली फायपर, आमिरचा फायपर आणि व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून टीव्ही अंपायरचा आणि आत्ताच व्हाईट बॉलचा इशारा.
आताच इथे आपण बघितलं तर अनुराग शास्त्रीनं देखील रेकॉर्ड केलं. याच्यात अर्धशतक या ठिकाणी आपण बघतो. अनेक रेकॉर्ड या ठिकाणी होत आहेत. काल 4,02,000 प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा ऑनलाईन टेनिस क्रिकेट .in वरती पाहिली होती आणि आज आकडा 4,50,000 आहे. त्यामुळे रेकॉर्ड होणार 21 लाखाचं देखील एक मोठं अचिव्हमेंट असणार आहे. बऱ्याचशा गोष्टी मैदानावरती घडतात. प्रेक्षकांचा उच्चांक लाभतोय या स्पर्धेला आणि हीच या स्पर्धेच्या यशस्वीतेची चोख पावती असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट ऑन पूल पद्धतीचा फटका, चेंडूचा प्रवास फाईन लेगच्या दिशेनं अति महत्वपूर्ण चौकार अजयच्या खाती प्राप्त होतोय. 4 धावांनी धावफलक वधारतोय, धावफलक सुधारतोय. तो 59 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. शानदार स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच आप खेलेंगे तो वह बिल्कुल बात तो बनेगी. गेंद को हुक किया गया था और गेंद बॉडी लाइन के बाहर चले गए. नदी को पार करने के लिए चाहिए नौका और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए चाहिए चौका. सही समय पर चौका आ गया. थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ आ रहा है. निश्चितपणे कौतुकास पात्र अशी कामगिरी ही डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी करताना दिसते. कारण सलग 4 सफलता प्राप्त केल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघ वरचढ ठरला होता आणि त्या वरचष्माला खाली खेचण्यासाठी एखादी छोटेखानी भागीदारी या मैदानावर आवश्यक होती आणि तीही भागीदारी आक्रमकतेच्या जोरावर अपेक्षित होतं. ते अपेक्षित कार्य अजय आणि त्याचा साथीदार अमृत वेर्लेकर करताना दिसतोय आणि जो डोलारा कोसळत होता, संघाची पडझड होत होती, पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे जो डाव अक्षरशः गडगडत होता, आता मात्र एका सन्मानजनक धावफलकाकडे अबीर बाबा क्रिकेटर्स बार्देज संघ हा मार्गक्रमण करतोय. या मैदानावर हे चित्र व्यतीत होताना दिसतंय. 59 धावा धावफलकावर. डावातील 7वं षटक हे प्रगतीपथावर होण्याच्या प्रतीक्षेत आमच्या विरुद्ध दिशेनं या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो गोलंदाज सोमेश दोडामणे. समोर आहे अमृत वेर्लेकर. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता, वेगाचा वापर करत खाली क्षेत्र भरून काढायचं होतं, मात्र अंदाज चुकतोय. चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावतोय. एका निर्धाव चेंडूची सांगता होत आहे. धावफलक 59 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. आपण क्षेत्ररक्षण रचना पाहू शकतो. या ठिकाणी डीप थर्मॅनला कोणी खेळाडू नाही, डीप पॉइंटला कोणी खेळाडू नाहीत. म्हणजे त्या ठिकाणी केवळ क्षेत्ररक्षण रचना भेदायची आणि चेंडू सर्वोत्तम धावांसाठी फटकावा हा इरादा अमृत वेर्लेकरचा मैदानावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलविला जातोय. ज्यावेळी संपर्क झाला होता या फटक्या मागे ध्वनी निनादला होता, त्यावेळी षटकाराचा शिक्का बसला होता. पंच औपचारिकता पूर्ण करतायत, षटकाराची खुणगाण देतायत आणि हा षटकार 60 पार करत 65 धावांपर्यंत मजल मारण्यास कारणीभूत ठरवितोय तो अबीर बाबा क्रिकेटर संघाला. 65 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र सर्व काही ठीकठाक, सर्व काही आलबेल चाललंय. सोमेश दोडामणे गोलंदाजी मार्कवर. याही वेळी रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला जातोय. वाईडची दादही या ठिकाणी मागितली जाते. ते फलंदाज अमृत वेर्लेकर याच्या करवी आणि पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध या ठिकाणी दाद मागितली गेल्याने तिसऱ्या पंचांच्या दालनात हा निर्णय येऊन ठेपतोय. स्वरूप क्रिकेटचं कोणतेही असो, लेदर बॉल असो, टेनिस बॉल क्रिकेट असो, नियमावली ही एकच आहे आणि या बदलत्या नियमावलीला अनुसरूनच पंचांनी हा चेंडू वैध घोषित केलाय आणि पंचांच्या निर्णय क्षमतेला दाद द्यावी. तिसऱ्या पंचांनीही मैदानी पंचांचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिलाय. म्हणजे किती योग्य पंचगिरी, बिनचूक पंचगिरी या मैदानावर होते आणि एवढ्या मोठ्या स्पर्धेला निश्चितपणे कुठे दृष्ट लागू नये याची खातर जमा घेत पंचांच्या कामगिरीनं मात्र मन ही जिंकली जात आहेत. एकंदरीत मैदानावर 65 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडूला दिशा दिली जाते. ती अर्थातच फाईन लेगला एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक येतोय, अचूकतेनं फेक करतोय तो यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. एकेर धाव निघते, एकेर धावेने धावफलक वधारला जातोय तो 66 धावांवर. यापूर्वीचा चेंडू गोलंदाज सोमेश तोडामणी याचा फुलटॉस स्वरूपाचा होता आणि हा फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू शरीरवेदी आहे हे अमृत वेर्लेकर पंचांना सांगतोय आणि परत एकदा तिसऱ्या पंचांच्या दालनात निर्णय येऊन ठेपतोय. जर हा चेंडू नो बॉल दिला गेला तर फ्री हिटच्या स्वरूपात पुढील चेंडू हा निश्चितपणे येऊ शकेल आणि जर फेअर डिलिव्हरी म्हणून घोषित केली तर हा चेंडू गोलंदाजीच्या खाती जमा होत केवळ एकेरी धावेवर अमृतला समाधान हे मानावं लागेल.
काय घडेल काय बिघडेल दोन्ही संघांच्या अस्तित्वाची लढाई या सामन्याची सुरुवात नाणेफेकीनं झाली आहे. संघर्षाची ठिणगी. हॅलो हॅलो 66 धावा आतापर्यंत झाल्या आहेत. निर्णय येणं अजूनही बाकी आहे पंचांकडनं. अखेर तिसरे पंच खातर जमा करतायत वारंवार या ठिकाणी ऍक्शन रिप्लेच्या सहाय्यानं. आणि सदरचा चेंडू हा शरीरवेदी आहे, त्यामुळे फलंदाजाने जी दाद मागितली आहे ती दाद योग्य. यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं. नो बॉल येताना एकटा येत नाही, सोबत फ्री हिटची जोखीम घेऊन येतो आणि तो फ्री हिटचा जोखमीचा इशारा पंचांकडनं येत. जी धावसंख्या 66 वर होती त्याला आणखी एका अतिरिक्त धावेची जोड म्हणजे 67 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. फ्री हिटचा चेंडू येणं शेष. लायसन टू किल अशा पद्धतीचा चेंडू ज्याला संबोधला जातं. फ्री हिटच्या चेंडूवर धावचीतचा अपवाद वगळता बाकी सर्व क्षेत्रात आपले विकेट सुरक्षित ठेवण्याची मुभा फलंदाजाला असते. असा गोलंदाजाचा कर्दनकाळ चेंडू. यावेळी फटका टोलविला जातो. सुरेख असा फटका क्षेत्ररक्षक रुरजनेचा भेद करत सरळ डीप पॉइंट सीमारेषा पलीकडे जातोय तो चौकारासाठी. व या 4 धावांनी 70 गाठली जाते. ती अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस क्रिकेट संघाच्या वतीनं 71 धावा धावफलकावर या 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात. एक्शन रिप्ले देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था. थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर गई थी. पॉइंट पर खिलाड़ी कवर पर खिलाड़ी उसके बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ उस घास को आग लगाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. जबरदस्त स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, कड़क शॉट, मजा आया देखने के बाद. सर या फटक्यामागे ताकद आजमावली नव्हती तर नजाकत होती. केवळ गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर केला, खाली क्षेत्र निवडलं आणि एकदा का मैदानावर 2 क्षेत्ररक्षकांची व्यूहरचना भेदली की सरळ चेंडू सीमारेषेला स्पर्श करतोय. डाव्याष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक स्थिरावला जातोय तो 72 धावांवर. 6 गडीबात 38 धावा. शांत गोटाचं वातावरण हे अबीर बाबा क्रिकेट संघाच्या बाजूनं. आणि त्यानंतर मात्र समर्थकांना कुठेतरी आशेचा किरण पल्लवित करणारा क्षण म्हणजे एक भागीदारी 7व्या गड्यासाठी या मैदानावर होताना दिसतंय. याही वेळी भरकटतोय आपल्या दिशेमध्ये डाव्याशीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू. इशारा निश्चितपणे अपेक्षित वाईडचा येईल यात कोणताही दुमत नाही. त्यावर मिळते आणखी एकेरी धाव. या 2 अवांतर धावाने धावफलक बदलतोय. 74 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावांची भागीदारी पाहासर होते 7व्या गड्यासाठी. ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है. जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है, अमृत और अजय यादव, और दोनों की सराहना हो जाएगी. ये 38 रन जो है ना 50 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि फ्रंट लाइन में आप मुकाबला खेल रहे हैं. योगायोग कालच्या सामन्याचा पहा. 3 गडीबाद 12 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर, पहिलं षटक निर्धाव गेल्यानंतर आणि त्यानंतर भागीदारी झाली होती किती धावांची तर तब्बल 68 धावांची आणि त्याचं रूपांतर विजयात झालं होतं. यावेळी स्वीजिटचा फटका एका बहारदार फटक्याने या ठिकाणी चौकार वसूल केला जातोय. आता मात्र गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर करत जो तिखट असा मारा होता तो पूर्णतः निष्प्रभ ठरविला जातोय चतुर्सूत्र फलंदाजीच्या जोरावर. आणि या चौकारनं ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर केला, क्षेत्ररक्षक गृहरचना भेदली आणि अतिमहत्वपूर्ण 4 धावांची जोड ही मिळाली. वारंवार ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता दोडामणीचा वेगवान असा चेंडू. केवळ दिशा बदलली अमृत वेर्लेकर कडनं आणि स्विच हिटचा बहारदार फटका त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 78 धावा धावफलकावर. यावेळी मात्र अंदाज चकतोय, वचपा काढला जातोय. मात्र काहीसा उशीर झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जी जबाबदारी खांद्यावर होती ती जबाबदारी चोखपणे अमृत वेर्लेकर पार पाडतोय. 6 गडीबाद 38 वरनं 7 गडीबाद 78 धावा. शानदार बॅटिंग, अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग अमृतनं केले. ती तुम्हाला आवडली असेल ना तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर अमृतसाठी होऊन जाऊ द्या. काय बॅटिंग केले. सर्वात महत्वाचा संघ अडचणीत असताना अमृत आणि त्याचबरोबर अजय यादव यांनी संघाचा डोलारा सांभाळला. मॅचमध्ये कमबॅक केलेलं आहे आणि बरोबर 42 धावांची अतिशय महत्त्वपूर्ण भागीदारी ते तोडण्याचं काम झालं. पण दोन्ही बॅट्समनने चांगली कामगिरी केली. 19 धावा 9 चेंडूमध्ये 2 षटकार 1 खणखणीत चौकार. एका बाजूला अजय यादव मैदानावरती तग धरून आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं अजय यादवने देखील दमदार कामगिरी केली. 24 धावांची कडी 10 चेंडूमध्ये
त्यातही खेळी जबरदस्त आहे. त्यामुळे हा सामना रंगतदार होईल. पहिली इनिंग आपण मैदानावरती पाहतोय. एक अत्यंत सुंदर बॅटिंगचा नमुना आपण अमित खास करून अमृतकडनं पाहिलं. अमृतनं जबरदस्त बॅटिंग केली. सर मी तर म्हणेन अभ्यास केला होता तो केतन मात्रे याचा, मात्र पेपर निघाला तो अमृत वेर्लेकर आणि अजय या जोडगोळीचा. अतिशय सहजतेनं गोलंदाजांचा त्याने सामना केला व आपल्या संघाला एका मजबूत अशा अवस्थेत नेऊन ठेवले. 78 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावाची भैरवी घालणारं षटक पाहायचंय. कोण गोलंदाज सज्ज होतोय? तो गोलंदाजी मार्कवर बहुधा विरेश याच्या हाती चेंडू सुपूर्द केला जातोय. प्रकर्षानं उणीव भासते ती सलील नाईक याची या मैदानावर जायबंदी होऊन या महत्वपूर्ण सामन्यात तो खेळू शकत नाही केपीएम क्रिकेट संघासाठी. आणि त्यामुळेच या ठिकाणी एका गोलंदाजाची कमतरता निश्चितपणे भासते. 78 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात एका मोठा फटका मारण्याची सुवर्ण संधी देणारा चेंडू, काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू बहारदाररित्या टोलावला जातोय स्विच हिटच्या स्वरूपात षटकारासाठी. आणि आता बघता बघता 80 पार धावसंख्या होते. 84 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौऱ्याऐंशी धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली बराच दूरवर राहतोय. एक धाव तर पूर्णत्वास नेली जाते. दुसऱ्यापासून इरादा होता स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा तो अजयचा. नाराज होतोय स्वतःवर, नाराज होतोय आपल्या सहकार्यावर. मात्र क्षणिक आलेल्या नाराजीचं संकट ओढून या ठिकाणी रोहन साळगावकर सांगतो की मीही अनुभवी खेळाडू आहे, मीही फलंदाज आहे, मोठे फटके माझ्या भात्यात आहे आणि त्यातील एखादा मोठा फटक्याचा आविष्कार या मैदानावर घडविण्याचा मी प्रयत्न करणार. आणि या आपल्या संघाला जी 80 पार करण्याची कामगिरी केली त्याला 90च्या पुढे नेण्याचा मी प्रयत्न करेन. ओव्हरपेस पद्धतीचा चेंडू भाष्य वर्तवलं होतं, पूर्वानुमान वर्तवलं होतं, त्याच्या दिशेने जवळपास जाणारा फटका सीमारेषेच्या अलगद झेलात परावर्तित होतोय व 8व्या गड्याच्या स्वरूपात या ठिकाणी संजय नाईक याच्या हाती झेलचित होऊन रोहन साळगावकरला स्वतःचा भोपळा न फोडता हे माघारी परतावं लागतंय. पंच्याऐंशी धावा धावफलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. कोण विसरेल तो क्षण. 38 धावांवर 2 गडी बाद. सुस्थितीमध्ये सुरुवातीला आबिरबाबा क्रिकेट संघ होता. रजत कुडाळकर गत सामन्यात प्रमाणे याही सामन्यात धोकादायक ठरू पाहत होता आणि त्यानंतर अनुरागची गोलंदाजी सलग 4 चेंडूंवर 4 सफलता. 2 गडीबाद 38 वरनं 6 गडीबाद 38 नाचूक अशी अवस्था. त्यानंतर संघाला उभारी देणारी डावकुराचा फलंदाज अजय आणि अमृत वेर्लेकर ठाकूर अंकुश ठाकूर यांच्यामध्ये झालेली 42 धावांची भागीदारी परत एकदा पुनरागमन होताना दिसतंय. आबिर बाबा क्रिकेटर्स बार्देश क्रिकेट संघाचं 85 धावा धावफलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावकुराचा फलंदाज महेश याची वर्णी हे मैदानावर लागतंय. महेशही या ठिकाणी स्विच हिटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. बहुधा चेंडूनं फळीची कड घेतली, यष्टीरक्षकाच्या हातचा विसावा घेतला. आणखी एक सफलता या ठिकाणी प्राप्त होते गोलंदाज विरेशच्या खाती. तर एकंदरीत ओमकार कणी याच्या हाती झेल सुपूर्द करत माघारी जावं लागतंय. ते डावकुराचा फलंदाज महेश याला 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 85 धावा. या सामन्यामध्ये योगायोग पहा. गडी बाद होण्याची शृंखला सुरू झाली. किती अबाधित राहते. सलग 4 सफलता आणि त्यानंतर एक भागीदारी झाल्यानंतर परत एकदा आपण या ठिकाणी सलग 3 सफलता पाहतोय. म्हणजे गोलंदाज वर चष्मा राखतायत. शेवटची जोडी मैदानावर. नवीन फलंदाज नामदेव पाणवलीकर अंतरिम खेळाडू मैदानावर येतोय साथ देण्यासाठी. आपल्या सहकार्याला एखादी धाव नामदेवनं काढावी, स्ट्राईक अजयला द्यावी अशी अजयची अपेक्षा असेल तर दुसऱ्या बाजूनं या चेंडूवर सफलता प्राप्त करावी. 85 धावांपर्यंत मर्यादित ठेवावं अबिर बाबा क्रिकेट संघाला. या इराद्यानं गोलंदाज विरेश गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज होतोय. विरेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं
समोर आहे तो नामदेव बाणावलीकर. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेखरित्या टोलविला जातोय विथ अलॉंग द कार्पेट पद्धतीनं चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनला. बऱ्याच वेळेच्या विश्रांतीनंतर एकेरी धावेच्या स्वरूपात धाव निघते. धावफलक उभारी घेतोय तो 86 धावांवर. 86 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचा चेंडू या डावाची भैरवी घालणारा चेंडू सहजतेने गोलंदाज हाताळील का, की या शेवटच्या चेंडूवर अपेक्षित मोठा फटका तो अजय याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का, पाहायचंय. 86 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज विरेश सज्ज होतोय. फुलरलाईन पद्धतीचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढला जातोय विथ अलाउंड द कार्पेट. जमिनीलगत फटका टोलविला जातोय तो मिड विकेटला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. फेक थोडीशी खराब येते यशरक्षक ओमकारच्या दिशेनं. संधी साधत दुहेरी धावांचं आव्हान लिलया पूर्ण केलं जात आहे. सरते शेवटी एकंदरीत धावा 88 धावफलकावर प्रति षटकामागे 11 धावांच्या धावगतीनं जमविल्या जात आहेत आणि प्रतिस्पर्धी संघाला विचार मंथन करण्यास कारणीभूत ठरविणारी अशी कामगिरी हा अजय फलंदाज करताना दिसतोय. निश्चितपणे एक चांगली बातमी या थंडीच्या वातावरणामध्ये हा सामना सुरू होण्यापूर्वी tenniscricket.in या वेबसाईटला 21 लाखाचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी 700 सबस्क्रायबर्सची गरज होते आणि आता तो आकडा कमी होतोय. अवघ्या 500 सबस्क्राईबर्सवर येऊन ठेपतोय आणि जर आजच्या रजनीमध्ये हा आकडा पार झाला तर निश्चितपणे tenniscricket.in ही वेबसाईट निश्चितपणे आजची रजनी ही चिरंतन यादगार ठरणारी रजनी ठरेल, यात कोणताही दुमत नसेल. मात्र ही कामगिरी स्वप्नवत अशी कामगिरी एका दिवसात घडली नाही तर 30 कामगिरी 21 लाखापर्यंतची होण्यासाठी प्रचंड मेहनत, प्रचंड इच्छाशक्ती संतोषजी नाणेकर आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून राहणारे गौरवजी सावंत आणि त्यांच्या अथक सहकार्यांच्या जोरावर आजच्या रजनीमध्ये त्यांचं स्वप्नवत वाटचाल पूर्ण हो अशी सदिच्छा देतोय आणि काही क्षणापुरती या मैदानावरून आपली रजा घेत परत एकदा या सामन्याची सारी सूत्र सर प्रशांत आरेवडेकर आणि त्यांच्या साथीला अशोक नाईक यांच्याकडे देत काही क्षणापुरती आपली रजा घेतोय. 88 धावा धावफलकावर झळकल्यात. 89 धावांचं आव्हान हे गाठायचं आहे. जसा दिवस संपतोय ना थोडीफार केमिस्ट्री होते. सवय लागली आता. ही सवय राहणं गरजेचं आहे. 48 चेंडूमध्ये 89 धावांची आवश्यकता. सामना जिंकण्याकरता MCT 2025चा दुसरा दिवस कोण गाजवणार या प्रश्नाचं उत्तर येणारे 48 चेंडू देणार आहेत. त्याचबरोबर 21 लाखाचा पल्ला गाठण्याकरता 500 सबस्क्राइबरची आवश्यकता. 21 लाख का अचीवमेंट पूरा करने के लिए अभी 500 सब्सक्राइबर की जरूरत है. तो ये 700 का आंकड़ा था. के लेटेस्ट वीडियो 200 सबसे पहले लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया और अब धीरे धीरे tenniscricket.in की टीम tenniscricket.in का ये यूट्यूब चॅनल 21 लाख की तरफ बढ़ रहा है. आपण हा चॅनल जर सबस्क्राईब नसेल केला तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि निश्चितच बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. या स्पर्धेचे शिल्पकार महेश कोनाडकर साहेब, निश्चितच त्यांचं कौतुक असेल ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि 10 लाखाचं पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेची मोठी ओळख आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण देशामधनं दिग्गज खेळाडू या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. टेनिस क्रिकेटमध्ये क्रांती करणारा यूट्यूब चॅनल अर्थात tenniscricket.in 21 लाखाच्या दिशेने वाटचाल. उद्या अंकुर सिंग, जगत सरकार, आशिक अली, रमेश केरळावरून येणार आहेत तर जगत सरकार सारखा खेळाडू आपल्याला कोलकात्यावरून पाहायला मिळेल. प्रथमेश राठोड मॅच फ्रॉम सोलापूर, योगेश पेंडकर मोठा खेळाडू आहे, लोकेश चव्हाण, रणजित फराटे दिग्गज खेळाडू या स्पर्धेच्या निमित्तानं या मैदानावरती पुन्हा एकदा आपल्याला रिझवण्या करता येतील. समालोचन कक्षामध्ये अशोक नाईक जॉइन होता है. कमाल का मैच है, उसमें कोई संदेह नहीं है और दर्शक काफी संख्या में मौजूद है. भावेश तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए, तो बल्लेबाजी करने के लिए बैटर धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं. ओंकार केनी और अल्बिनो अभी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैदान के अंदर मंत्रणा करते हुए सारे खिलाड़ी. बड़ा मुकाबला, शानदार मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. सिकंदर सुपर जायंट्स और अबीर बाबा
11 की टीम बीच मैदान पर है. काफी संख्येत दर्शक जो है समर्थक है. काल 3 वाजेपर्यंत प्रेक्षकांनी जागा सोडली नव्हती. सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड सोडलं नव्हतं. आज देखील पहा मैदानावरती तुफान गर्दी आहे. तुफान गर्दी आहे. इथे आपण सुज्ञ आहात, दर्दी आहात म्हणून गर्दी केलेली आहे. अशोकजी, हा माहोल पाहून काय वाटतं? काल जवळजवळ 3 वाजेपर्यंत तमाम प्रेक्षक, सुज्ञ प्रेक्षक जागा सोडायला तयार नव्हते. आजही त्यांना शेवटचा सामना इथे बघायचा आहे. प्रचंड गर्दी या ठिकाणी केलेला आहे. माहोल तर जबरदस्त वाटतोय. बिल्कुल काफी भारी संख्या में तादाद है दर्शक और मैच अच्छा होगा. इमरान मुल्ला है बल्लेबाजी के साथ, अल्बिनो कारवालो है, नागभूषण गावकर वो भी एक बहुत ही जो कि मैच विनर बल्लेबाज है. तो मेरे ख्याल से प्रशांत जी एक अच्छा मैच होगा. बड़ा टोटल है और 89 रन जो कि टोटल मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे और उसके सामने देखना होगा किस तरह से पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. उसके बाद और एक पावर प्ले का ओवर आएगा और देखा जाएगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है. कल के दिन में पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम और अब दूसरी टीम पक्की होगी जो सेमीफाइनल में खेलने वाली. जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर आप जरूर देखेंगे. क्या ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार बनेंगे, देखने वाली बात है. भावेश पवार अपनी बॉलिंग में तैयार है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए ओंकार केनी, ओमी केनी ऑन स्ट्राइक. अल्विनो नॉस स्ट्राइकर इन की तरफ है और कमबैक से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है भावेश पवार. ब्लाइंड टिप पर खिलाड़ी पॉइंट है. उसके साथ कवर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात है. और इस प्रतियोगिता में सारे खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए दर्शक आए, लेकिन नागभूषण गावकर इनके भी बहुत सारे फैन जो है ना, वो खेल देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भावेश पवार के हाथ से गेंद जो है ना वो छूट गई. अब फिलहाल अपने बॉलिंग पर तैयार हो रहे हैं. प्राइड ऑफ भिवंडी मिस्टर भावेश पवार. ओंकार वन स्ट्राइक, पावर प्ले ऑन, गेंदबाजी करने, गेंदबाज तैयार. ऑफ टाइम के बाहर वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत. भावेश पवार है, पलट पर करना जानते हैं, शिकार करना जानते हैं. पहली गेंद परफेक्ट है, वाइड यॉर्कर ओमकार केनी के लिए. प्रशांत जी, इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की है. बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदों को ज्यादा टर्न करा रहे, घुमा रहे और उसके साथ यॉर्कर, वाइड यॉर्कर भी बहुत अच्छा करते हैं भावेश पवार. अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, कवर पर फील्डर. वो चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए इस बार बल्लेबाज और सिर्फ सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में. बड़ा टोटल है, 8 ओवर का मुकाबला है. 89 का लक्ष्य है सामने मैच को जीतने के लिए. जीत हो जाएगी तो बिल्कुल इतवार को फिर से मौका रहेगा इस मैदान पर. और ये करो या मरो वाला मैच है. बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट एमसीटी 2025 7वां संस्करण. बस प्राइस की बात करें तो 10 लाख की नकद राशि है. खूबसूरत ट्रॉफी. महेश कोनाडकर साहब, थैंक यू सो मच. और जो हमारे वेल विशर है उनके लिए भी एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. गेंदबाजी कर रहे हैं भावेश. सारे स्पॉन्सर जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इसीलिए गोवा का एक सबसे बेहतरीन और बड़ा टूर्नामेंट इस पर tenniscricket.in पर आप देख रहे हैं. भावेश की अगली गेंद, शॉट अच्छा नहीं है, गेंद के ऊपर निगाह नहीं है. ऑन साइड पर गेंद को स्क्वायरली की तरफ खेलना चाहते थे और बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं. स्कोर 1 रन बगैर किसी पर नुकसान के. मिड स्टंप पर गेंद पिच हुई और कट होकर बाहर की तरफ निकली. खड़े खड़े बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा. इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, टाइमिंग लाजवाब. थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई. गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. ये लगा एमसीटी चौका 4 रन के लिए. पहले जो शॉट खेला तो वो इतना अच्छा नहीं था, गेंद को रीड नहीं कर पाए. अब जाकर देखे रचनात्मक बल्लेबाजी और रिवर्स स्विप खेला गया. बल्ले के बीचों बीच पॉइंट के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी बेहतरीन टाइमिंग. इस बार अल्विनो का टाइमिंग बढ़िया है. 4 पर खेल रहे हैं. ओंकार केनी 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चौके के मदद से स्कोर 5 पर पहुंच चुका है. बड़ा मैच, बड़ा मंच, गोवा का टूर्नामेंट और दर्शक, काफी सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in पर और सुरेश रैना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर.
बॉल की जरूरत है, ये बॉल बिल्कुल दर्शक दीर्घा में चला गया, वो तो वापस नहीं आने वाला है। कीप स्कोरिंग, कीप स्माइलिंग, स्कोर बनाओ और मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अल्बिनो का कॉन्फिडेंस यहां से बिल्कुल बढ़ने वाला। केतन म्हात्रे भावेश के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, प्लान बन रहा है, खिचड़ी पक रही है। देखिए यहाँ से वो सारे खिलाड़ी बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा एमसीटी 2025 की भी हो रही है। tenniscricket.in पर कल 4,02,000 दर्शक, आज 4,50,000 दर्शक जिन्होंने ये टूर्नामेंट एंजॉय किया। और सुरेश रैना ग्राउंड पर भी दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। बढ़ गए दर्शक, बढ़ गए रोमांच, बढ़ गए रोमांच, बढ़ गए दर्शक, बढ़ गए दिलचस्पी काफी। और कौन उठाएगा एमसीटी 2025 की ये खूबसूरत ट्रॉफी, कौन उठाएगा और आज का दिन किसके नाम पर रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा सबके लिए। आयोजन तो बिल्कुल कमाल का है। महेश कोनारकर साहब, जिनकी जितनी सराहना की जो उतनी कम है, और एक बहुत बड़ा इनाम आपको करना होगा, बहुत ही अच्छा काम। गेम बनाएगा नेम, गेम बनाएगा नेम। बाबिश तैयार, सामने बल्लेबाज अल्बिनो इज प्लेइंग ऑन 4, स्कोर 5 for none। ओ जबरदस्त स्ट्रोक है, गेंद को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, बॉडी लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए मिला बोकार, जड़ दिया शानदार चौका अरुण के बल्ले से। एमसीटी चौका, दूसरा चौका है, जबरदस्त पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। थोड़ा सा पीछे हटे थे और इनसाइड आउट गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया था दर्शन स्टोक बल्लेबाज अरुण के बल्ले से। बहुत शानदार 2 चौके। ओ ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, जल्दी खेल बैठे, इस बार खेलना चाहते थे, जो कि मेरे ख्याल से बॉलर के ऊपर से, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 2 चौके, 89 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और स्कोर हो चुका है पहला ओवर के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान से। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर बल्लेबाजों की। एक और से बल्लेबाजी कर रहे हैं अल्बिनो कार्वालो और उनका साथ देते हुए ओमकार केनी। पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। थोड़ी सी चर्चा हो रही है, छोटी सी टीम मीटिंग हो रही है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए, क्योंकि पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब बड़ा टोटल होता है तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो पहले ओवर के बाद देखने को मिली। 2 चौके, 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप प्रोफेशनल टूर्नामेंट देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। वो 500 लोगों के लिए बिल्कुल मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे इंडिया के प्रोफेशनल टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए। महेश कोनारकर साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन करता एमसीटी 2025 7वां संस्करण। मैड्रिड ग्रुप का भी एक बार फिर बहुत बड़ा रोल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, नाउ स्कोर 9 पर रन, चेसिंग टारगेट ऑफ 89 रन। बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर ओंकार केनी। गेंदबाजी में महेश साकलकर को बुलाया गया, छोटा रनअप है। राइट पर खिलाड़ी पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थोड़ा सा पेंडिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कवर पर भावेश पवार आए हैं दारी के अंदर, और जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जो है ना वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर है, तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव है लेफ्ट हैंडर के लिए। ओबी केनी ऑन स्ट्राइक, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड किया जाएगा। थ्रो अच्छा था नामदेव का, लेकिन महेश साकलकर को इस गेंद को गैदर करना था। बाल बाल बचे बल्लेबाज ओंकार केनी। इस सिंगल के साथ स्कोर डबल फिगर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अल्टी पल्टी वाला शॉट रन के लिए निकले स्ट्रोक के साथ, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग थी। शायद करीबी मामला बन सकता था, रनआउट के रूप में फिलहाल बच गए वहां पर। और महेश साकलकर अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं अल्बिनो कार्वालो। स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान से। फिर से परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है, तो ये थोड़ी सी तब्दीली होगी बार बार फील्डिंग के साथ। और अब मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर तैनात किया गया है, और महेश साकलकर
थोड़ा इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बहुत दूर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 11 रनों पर। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और ऑन साइड पर है मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। 11 रन बिना किसी नुकसान से। मिस्टर मिस्ट्रा के साथ बिल्कुल आंकड़े बदलते हुए बीच मैदान पर दोनों अंपायर चर्चा भी कर रहे हैं और मजा आएगा। आज का रण क्षेत्र केवल शक्ति का नहीं है बल्कि सूझबूझ और कला का भी होगा और उसका प्रमाण देने के लिए मैदान के अंदर खिलाड़ी है। मुकाबला इतना जबरदस्त होगा कि इतिहास खुद को दोहराने से पहले 2 बार सोचेगा। आज हिस्ट्री बनने वाली है। नो बॉल का इशारा किया गया, इसका मतलब आने वाली गेंद के ऊपर बिल्कुल अंपायर का हाथ जो है ना सर के ऊपर से घूमने वाला है। देखिए हाथ और एमसीटी बट 2025 ये पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा अल्बिनो जो 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर से ऑन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक है, खींच के मारा, सॉलिड मारा कम, घसीटा ज्यादा, गेंद बॉडी रन के बाद 6 रन, एमसीटी 6 रन। मन में भी बिल्कुल कोई इस गेंद के साथ डर नहीं था। थोड़ा सा ऑफसाइड पर निकले, शफल हुए और बल्ले के बीचों बीच ताकत भरा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, फ्री हिट का फायदा मिला और फ्री हिट पर एक बड़ा शॉट लगा। एमसीटी 6 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 17 रनों पर बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत 89 रनों के जवाब देती हुई। फिलहाल देखना होगा दूसरी टीम कौन होगी। थोड़ी समय दो कि थोड़ा वक्त जरूर बाकी है। महेश की अगली गेंद अल्बिनो के लिए। इस बार ऑफ साइड पर अच्छा शॉट, एक अच्छा ऑफ ड्राइव, लंबी दौड़ लगाई, एक्स्ट्रा कवर से पहले रन के लिए निकले, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग और बिल्कुल सही फैसला। रनआउट का खतरा बन सकता था इस बीच में मैदान पर। और पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करना पसंद करते बल्लेबाज अल्बिनो, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर भेजा गया इनको ओंकार के साथ और वो बहुत ही पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाज अल्बिनो द्वारा। एक छक्का 2 चौकी की मदद से इस मैच में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बेहतरीन बल्लेबाज ओंकार के ऑन स्ट्राइक गेंदबाजी करने के लिए महेश साकलकर। इस बार थोड़ा सा अलग शॉट है लेकिन कारगर साबित हो जाएगा। गेंद फाइन लेग बॉडी रन के बाद 4 रन ओंकार किनी के बल्ले से ये कमाल का एमसीटी चौका। किसी भी तरह बहुत महत्वपूर्ण है और वो रन बन रहे पावर प्ले में, क्योंकि 89 के टारगेट के सामने एक शुरू में पावर प्ले में 20-25 रन होने चाहिए स्कोर बोर्ड पर और वो रन बनते हुए मैदान पर। देखिए आप tenniscricket.in से रिप्ले आपने देखा किस तरह से ये शॉट खेला ओमकार ने और सामना करते हुए एक बार फिर से अगली गेंद का। एक लेफ्ट हैंड शॉट, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और फिर से शानदार फील्डिंग। बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है सामने। थोड़ा सा इस बार ढिलाई देखने को मिली फील्डिंग के साथ और उसी का फायदा उठाते हुए जो सिंगल था उसको 2 रन में तब्दील किया ओमकार केनी और उन्हीं के साथ अल्बिनो कारवालो ने। भाग्य भी साथ दे रहा है, यहाँ सिंगल ही मिलना चाहिए था, तब जाकर एक अच्छा थ्रो आया जो सीधा स्टेप पर लगा और उसके बाद में और एक रन बल्लेबाजों को मिला। ओंकार केनी बहुत इंपॉर्टेंट पारी के स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है। टोटल रन संख्या 24 स्कोरबोर्ड पर है और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी अभी तक रही है। ओंकार केनी इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है। ऑफ साइड पर फ्लैंक स्लिप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, डीप स्टैक कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले ऑन रहेगा तो इसीलिए 2 खिलाड़ी 32-10 के दायरे के बाहर रहेंगे। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर मौजूद है। अब जाकर ऑफ साइड पर देखिए लेफ्ट हैंडर के लिए फ्लाइंग स्लिप, एक गली, पॉइंट, स्टक कवर और वो वाइड लॉन्ग ऑफ। इस ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, स्टक कवर पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या फिलहाल 25 रन। क्या स्टार्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अल्बिनो और ओंकार प्रारंभिक बल्लेबाज है आणि या मॅच मध्ये धडाकेबाज सुरुवात बेनिसच्या फलंदाजांनी बिनधास्त बॅटिंग केले। पॉवरफुल प्लेच्या या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करत असताना जबरदस्त स्टार्ट केला। पाव शतक इथे संघाचं पूर्ण झालंय। 89 धावांचा पाठलाग करत असताना अशोकजी अत्यंत सुंदर सुरुवात, अत्यंत चांगला स्टार्ट आणि प्रभावी कामगिरी विशेष करून अल्बिनीकडून। बिल्कुल खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाए, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और सम्मान देने के साथ सिंगल पर भी ध्यान दिया।
और वही शुरुआत जो बिल्कुल सख्त जरूरी थी वो शुरुआत की दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले 2 ओवर का, 1 ओवर जरूर बाकी है जो एमसीटी ओवर बॉलिंग पावर प्ले का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ रोहन सालगावकर आ चुके हैं, जिन्होंने क्या लाजवाब गेंदबाजी की पिछले मैच में। 1 ओवर में बिल्कुल बांध कर रखा, दबाव बढ़ाया बल्लेबाज पर और वहीं पर विकेट, बहुमूल्य विकेट चटका गए वो रोहन सालगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए स्कोर टोटल 25 रन और सामने ओमकार केनी उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। इंपॉर्टेंट मुकाबला खास करके रोहन के लिए। पहले महेश साकलकर इनको अपने गेंदबाजी करते हुए देखा था, अब रोहन आए गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाजी करने के लिए ओंकार जो बिल्कुल पलटवार कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, स्टक क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और दूसरे के लिए भागे। विकेट के बीच अच्छी दौड़, तालियां बजने वाली है, तालियों की आवाज आने वाली है। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए अल्बिनो, वाह वाह, ओंकार के लिए बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ। अब जाकर इसको 27 रन बगैर किसी नुकसान के पहले विकेट के लिए 27 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। विकेटों के बीच में भी बहुत अच्छी दौड़, नॉन स्ट्राइक रन पर अल्बिनो लगभग खतरे में थे, रन आउट के बच गए वहां पर। एक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 रन पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आ रहे रोहन, और जब महारथी आमने सामने होना तो रोमांच अपने चरण सीमा पर होता है। ये सिर्फ खेल नहीं है, प्रतिष्ठा की जंग है। गेंद और बल्ले के बीच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। गेंदबाजी करें, गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को आंसर पर खेल दिया। मिड विकेट पर 49 पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या फिलहाल 29 रन स्कोर बोर्ड पर है। टारगेट 89 का, टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। आज पर्दे उठेंगे और दुनिया देखेगी कौन सी प्रतिभा समय पर कसौटी पर खरी उतरती है। वो दुनिया देखने वाली है tenniscricket.in पर और सुरेश रैना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर सारी दुनिया ये जबरदस्त खेल देख रही है। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर भावेश पवार के हाथों में। इस बार गैप ढूंढने में असफल रहे। ओवर पिच गेंद जरूर थी, अच्छा शॉट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूरी पार नहीं कर सकी और पहला विकेट इसी के साथ वापस चल गया टीम का। लेकिन एक अच्छी शुरुआत, जो रनों की जरूरत थी, पावर प्ले में रन बनाने चाहिए थे, वो रन बन चुके और स्कोर बोर्ड रुका हुआ। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। आप tenniscricket.in से रिप्ले में देख सकते। देखो ये किस तरह से शॉट लगाया, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात था। एक आराम के साथ उनके हाथों में गेंद चली गई और पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया रोहन ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ये दोनों बल्लेबाज जो अशोक जी ना बीच मैदान पर सरदर का कारण बने थे। इस मैच में अल्बिनो ने 16 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। एक छक्का इनके बल्ले से, 2 शानदार चौके। जो प्रेशर ओंकार के ऊपर नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी अल्बिनो ने अपने कंधों पर ली थी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है, लेकिन दूसरी एंड पर रोहन को विकेट मिला है। इतना बड़ा टोटल है, इतना अच्छा मैच है, आखिरी मुकाबला आप खेल रहे हैं, पिक्चर सुपर हिट है और कहानी में ट्विस्ट नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तो ये विकेट आने के बाद कहानी दोबारा नए तरीके से शुरू हो जाएगी। रोहन बीच मैदान पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 3 पर विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, संगकारा का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है, लेकिन विकेट मिला। रोहन को विकेट मिला है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। रोहन की अगली गेंद, बढ़िया लाइन, टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, गेंद इनके बल्ले को लगी बहुत ऊपर स्टिकर की तरफ और उसके बाद में शॉर्टेस्ट कवर की तरफ चली गई थी। रोहन ने गेंद को रोका और रन बनाने का कोई नहीं मौका। अब जाकर स्कोर जो है 29 पर रुका हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदों को दोनों तरफ कट करा रहे, कभी लेग कटर कभी ऑफ कटर, पिछली गेंद ऑफ कटर और बल्लेबाज थोड़ा सा अचंभित हो गए। इस बार ये गेंद लेग स्टंप पर थोड़ी सी, जो कि लेग स्टंप से बाहर निकली। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। रोमांच बढ़ रहा है, रोमांच बढ़ रहा है इस मुकाबले में और एक अच्छा पैटर्न है। दर्शक इस तरह का मुकाबला देखने के लिए आते हैं। स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर। रोहन की अगली गेंद, इमरान स्ट्राइक, टपकाते गेंद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज और पॉइंट पर खेल दिया है।
1 रन का इजाफा, स्कोर 31 तक पहुंच चुका है। इस रोमांचक भिड़ंत का हर पल एक नई कहानी होगी और हर चाल एक नया दाव होगा। दर्शकों की सांसें जो है बिल्कुल इस वक्त बहुत तेज हो गई है। इंतजार है एक बस अभूतपूर्व परिणाम का। कौन यहाँ इस मैच में आखिरी मुकाबले में बेहतर करके आज का दिन, आज की रात, जिसमें सब खिलाड़ी जो है अपने फैंस के लिए मंत्रमुग्ध करने वाले, वो कौन से खिलाड़ी है, कौन सी टीम है जो आज इस टूर्नामेंट में खुद को साबित करेगी, अप्लाई करेगी और क्वालिफाई होने वाली है। थोड़ा सा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। राउंड विकेट आ चुके लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए रोहन सालगावकर। अगली गेंद लेकर एक छोटे रनअप के साथ ये बाहर जाने वाली, इस बार अपकटर टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। गेंद थोड़ी सी ज्यादा घूम रही, ज्यादा टर्न हो रही है रोहन के गेंदबाजी का अगर देखा जाए तो। लेग कटर, ऑफ कटर और बल्लेबाज को निश्चित रूप से जो कि थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। ये लगा एमसीटी सिक्सर। ऍक्शन रिप्ले अतिशय इंटरेस्टिंग असणार आहे। ज्या पद्धतीने हा फटका खेळलाय, ऍक्शन रिप्ले पहा आणि काय फटका सजवला होता। बॅट्समन टप्पा चुकला, बॅट्समनने गुडघा टेकला आणि ओमीनं काय षटका ठोकला। वा ओमी वा, मैदानावरती एक चांगली बॅटिंग आपल्याला बघायला मिळते। चुकीला माफी नाहीये, चुकीला माफी नाहीये। हे फक्त चित्रपटातलं वाक्य नाही, या क्रिकेटच्या या खेळामधलं, या रणमैदानामधलं वाक्य आहे। आणि मैदानावरती क्रिकेटचा खेळ जगत असताना ओमीकडे धावसंख्येला या ठिकाणी आकार येतोय। धावसंख्या पोहोचले 38 वरती, 49 धावांचा पाठलाग। तिसऱ्या षटकाचा खेळ, पहिल्या षटकात 9 धावा, दुसऱ्या षटकात 16 धावा आणि या षटकात रोहन विरुद्ध हल्ला चढवत शेवट अतिशय दमदार केलाय। जबरदस्त बॅटिंग ओंकारकडून। आणि आता मैदानावरती चर्चा सुरू आहे। आमच्याकडे चर्चा करण्याकरता अशोक नाईक आहेत। 3 षटके समाप्त झालेत, 38 धावा दापलकावरती आहेत आणि इम्रान आणि मैदानावरती ओंकार केनीसाठी बॅट्समन तग धरून आहेत। आता उर्वरित चेंडूचा विचार केला, 30 चेंडू शिल्लक आहेत, 51 धावांची आवश्यकता। रंगतदार सामन्याची लक्षणं आणि त्याकरता हे स्टेज जे आहे ते तयार झालंय। बिल्कुल प्रशांत जी, 3 ओवर समाप्त हुए, 5 ओवर बाकी है, 30 गेंदों का खेल बाकी है, 51 रन चाहिए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल तो 10 रन के साथ रन बनाने हैं। बिल्कुल देखिए tenniscricket.in से जो कि एलईडी स्क्रीन पर बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या कहां से शुरुआत रही संतोष नाणेकर, गौरव सावंत की, और ये मुकाम कहां पर ले गए। काफी मेहनत की है दोस्तों, इस उनके जो कि परिश्रम को दाद भी देनी पड़ेगी। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन देखना होगा। चर्चा हुई, छोटी सी टीम मीटिंग हुई और आखिरकार चर्चा के बाद गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। तीस गेंदों का खेल, 51 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए। और सामने दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन, केतन मात्रे दिखाई देते हुए स्क्रीन पर गेंदबाजी के लिए खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर। अच्छी गेंद इस बार ये यॉर्कर लेन के सम्मान दिया कवर की तरफ, और जब तक पॉइंट से जाते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। क्रुशियल मुकाबला है। फिलहाल आपके पास 29 गेंदें और 50 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद पर सिंगल लिया गया, इमरान मुल्ला 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ओंकार केनी ने 1 छक्का 1 चौका जड़ा है। बहुत ही लाजवाब पारी खेल रहे हैं। अब स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए ओंकार, 2 बड़े खिलाड़ी आणि जंगलामध्ये 2 वाघांची झुंज बघायला कोणाला आवडणार नाही। मैदानावरती 2 शेरदिल खेळाडू आहेत, एका बाजूला ओंकार, दुसऱ्या बाजूला केतन म्हात्रे, हे 2 दिग्गज खेळाडू आहेत आणि अशा प्रकारे एक मोठं द्वंद्व बघायला कोणाला आवडणार आहे। प्रेक्षक तर हेच युद्ध बघायला आलेत। गोलंदाजी मार्कवरती केतन म्हात्रे, बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद। और उसके बाद में क्या हुआ, भावेश के बाहर इस गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा। किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। यहाँ क्या हुआ देखिए मैदान के अंदर, पिछली गेंद आप करीब से देखिए, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर। क्या बल्ले को लगी थी या एक बार फिर वो देखना बहुत जरूरी है। अगर बल्ले का अनुने किनारा तो वो कैच था। भावेश पवार, इस गेंद को आपको रोकना था, चाहे कैच हो या ना हो। थोड़ी सी गलती आपसे हुई है और उसका फायदा बल्लेबाज को मिलेगा।
अच्छा शॉट बॉलर के सामने इस बार गेंद को खेला। फॉलो थ्रो में बहुत ही शानदार फील्डिंग, पैरों पे थोड़ी सी टकराई जरूर गेंद, लेकिन रन बिल्कुल नहीं बना स्कोर के खाते में। बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है मैदान पर। सामने 2 ओवरसीज खिलाड़ी है, एक ओर से केतन मात्रे और सामने है ओमकार केनी जो लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल का मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्लेबाज ओंकार केनी इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर है और इस ओवर की बात करें तो वह 3 गेंदों का खेल बहुत ही शानदार रहा। ओ गेंद को खेलना चाहते थे फाइंडिंग की तरफ, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा। कमाल का बैटल है। सांप और नेवले के बीच लड़ाई कौन नहीं देखना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहेगा। एक तरफ केतन, एक तरफ ओंकार, और कमाल का बैटल। अच्छे कॉन्टेस्ट दर्शकों को देखने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी लेग स्टंप पर जगह बनाई थी, अगर गेंद थोड़ी सी भी बल्ले पर लगती तो फाइन लेग बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग पर 4 रन बन सकते थे। अगली गेंद से बीच में इस बार ऑफ साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट ये लगा। एमसीटी चौका 4 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। और अशोक जी, 2 बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट जरूर होता है। केतन है, ओंकार है, ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा रूम मिला और उसका भरपूर फायदा उठाया। मिला रूम और मचाया धूम। ओंकार वाह वाह क्या बल्लेबाजी आप करें। एमसीटी चौका और अब जाकर के धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ आ रहा है। स्कोर मैं आपको जरूर बताऊंगा। स्कोर इसी के साथ 48 पर पहुंच चुका है, 89 का टारगेट। इस बार भी बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन प्रोटेक्शन है। डीपेस्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 49 रन है। आज के दिन का सबसे बेहतर मुकाबला सिकंदर सुपर जायंट और अभी बाबा 11 के बीच। कमाल का मैच है। केतन अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामना करने के लिए इमरान मुल्ला। राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट आते हुए अपने बॉलिंग बार पर केतन मात्रे। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे ऑन द राइट, थोड़ा सा बल्ले का भीतरी किनारा, जो साझेदारी बन रही थी, जमकर बल्लेबाजी हो रही थी, वहां पर एक कीमती विकेट हासिल करते हुए मैच में फिर से कमबैक करते हुए स्कोर वहीं पर रुका हुआ। और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए टोटल 40 रन। स्कोर हो चुका है 49, 2 विकेट पर। 24 गेंदों का 4 ओवर का खेल बाकी है। 10 रन के साथ लगभग रन बनाने पड़ेंगे मैच में जीतने के लिए। जी हाँ अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। टप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। ये शॉट अच्छा नहीं था। अगर ऑफ टाइम के बाद 34 स्टंप की तरफ गेंद है तो उसी गेंद को आपको कमर के ऊपर से या एक बार फिर मिड ऑफ बॉडी लाइन की तरफ, जो लॉन्ग ऑफ बॉडी है उस बॉडी लाइन की तरफ आपको खेलना था, या पॉइंट क्षेत्र में आपको खेलना था। ये शॉट अच्छा नहीं था बैटर का। इमरान ने पिछले 2 मुकाबले में जबरदस्त असरदार गेंदबाजी और लाजवाब बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन इस मैच में इनका मैजिक ज्यादा नहीं चला। अब आपके पास 24 गेंदें हैं और 40 रनों की जरूरत है। ये 10 का औसत है। 10 के औसत से आपको रन न बनाने पड़ेंगे। ये मैच क्रिकेट के इतिहास में एक थ्रिलर का बहुत बड़ा एक सुनहरा पल लेके आएगा, जहां हर पल रोमांच की नहीं दास्तान लिखी जाएगी। ये टक्कर नहीं, जुनून की हद है। बीच मैदान पर कमाल का मैच और 21 लाख का सफर पूरा करने के लिए, अचीवमेंट पूरा करने के लिए आपको वो tenniscricket.in को सब्सक्राइब करना होगा। अभी वो 500 का आंकड़ा थोड़ा और कम हो गया, अब 700 से हम थोड़ा और नीचे आ गए हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार हमको यहाँ तक लेके आया है और संतोष नानेकर ने बहुत संघर्ष के बाद ये अचीवमेंट की है। आपका प्यार, आपकी मदद, आपका आशीर्वाद लेके संतोष नानेकर यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपके लिए दरख्वास्त करना चाहूंगा, tenniscricket.in को आपको सब्सक्राइब करना होगा। 21 लाख के बहुत करीब है हम। गेंदबाजी करें, गेंदबाज तैयार। रोहन 24 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। ओंकार स्ट्राइकर इन पर है, फ्लैग पर खिलाड़ी गनी है, पॉइंट है, एक स्टक पर लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद। कमाल का मैच रुकते बरकरार इस मुकाबले में। में गेंद और ये कैच। केतन ने जबरदस्त कैच लपका है और ये केवल इन्होंने कैच नहीं पकड़ा है, मैच पकड़ा है। ओंकार बैक टू द पेवेलियन, इसीलिए तालियां बजी है। तालियां रुकने वाली नहीं है, चारों ओर से तालियां आ रही है। रनिंग कैच, केतन का रनिंग कैच, केतन का स्टनिंग कैच, और ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है जिस तरह से कैच लपका है। ओंकार बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। अशोक जी नायक मैच में दोबारा ट्विस्ट, सेट बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा, tenniscricket.in द्वारा दिखाया जाएगा।
बल्लेबाज निराश है, बल्लेबाज हताश है। ये पैटर्न था। ऑफ टाइम के थोड़ा बाहर गेंद थी, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा और केतन मात्रे। ओहो, ये सेलिब्रेशन देखे केतन का सेलिब्रेशन जबरदस्त है क्योंकि विकेट मिला है और इस विकेट के साथ मैदान के चारों ओर से तालियां बजी है। क्या माहौल बना हुआ है। महेश कोनाडकर साहब, आप भी खुश हो जाएंगे जिस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। और MCT 2025 दूसरे दिन सुपर हिट है। ये आंकड़ा जो 4,50,000 का है ना, वो 5 लाख के ऊपर जाएगा। अचीवमेंट बहुत सारे होने वाले हैं। कल 4 लाख 2,000 दर्शकों ने ये टूर्नामेंट एंजॉय किया था। और इससे पहले कि ये मुकाबला शुरू हो जाए, 4,76,000 प्रेक्षकांनी आतापर्यंत आजचा दिवसभराचा खेळ पाहिला। याचा अर्थ 8,76,000 8,78,000 प्रेक्षकांनी आतापर्यंत 2 दिवस टूर्नामेंट एंजॉय केलेली आहे। रोहन अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार। आते आते एक बिल्कुल बड़ा शॉट मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर। लगातार 2 विकेट खो चुके हैं इमरान मुल्ला के बाद और एक धक्का लगा जो कि टीम को और एक बड़ा विकेट चला गया। लेकिन उसके बावजूद आते आते एक तगड़ा शॉट और नॉन स्ट्राइकर इन पर साथ दे रहे हैं संजय नाइक, सामने स्वप्नेश वेलिप और रोहन सालगावकर बहुत शानदार गेंदबाजी करे अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। ओ, अल्टी पल्टी वाला शॉट, अपने आप पर नाखुश हो गए, नाराज हो गए। ये मौका था बिल्कुल, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद के साथ रोहन अपने बॉलिंग बार पर। कमाल का मैच है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, मानो आज फाइनल का मुकाबला है। उस तरह का माहौल बना हुआ है। गेंदबाजी करने का गेंदबाज रोहन। वो टॉस गेंद इस बार कवर पर खिलाड़ी तैनात है, केवल 1 रन लेने का मौका मिलेगा। जब कहानी अपने क्लाइमेक्स की बात ओर बढ़ती है ना, तब जाकर हर किरदार की चाल मायने रखती है। और यह मुकाबला पल पल की कशमकश है, बेहतरीन कला और अद्भुत का संगम है। व्हाट अ मैच, कमाल का मैच। दर्शक इस तरह का मैच देखने के लिए आते हैं। अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। आपके पास 20 गेंदें हैं और जीतने के लिए फिलहाल 33 रनों की जरूरत। ऑफ टॉप के बाहर गेंद को ड्राइव किया, इसका कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 19 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। हर पल पल ये मुकाबला और बेहतर और रोचक और दिलचस्प बनता रहा है और दर्शक हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी मुकाबला झुक रहा है अभी बाबा बारदेश क्रिकेट टीम के साथ तो कभी KPM क्रिकेट की टीम के साथ। रोहन की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्लॉकल में यॉर्कर लेन की कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, विकेटों के बीच में शानदार दौड़, बड़े शॉट लग रहे हैं लेकिन सिंगल डबल भी बहुत महत्वपूर्ण बन रहे मैदान पर। 2 बहुमूल्य रन और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी टोटल खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 59। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 30 रन। तो लगभग 10 रन के साथ प्रति ओवर चल रही है KP क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में। दोनों टीमें जो है ना बिल्कुल आज क्वालिफाई करने के लिए आए, लेकिन डू और डाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का समय और बीच मैदान पर मंत्रणा होती भी। कमाल का मैच, काटे की टक्कर। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दूसरे दिन का खेल 8,78,000 दर्शकों ने ये प्रतियोगिता का लुत्फ अभी तक उठाया है और ये सफलता है महेश कोनाडकर साहब, आपकी मेहनत की बिल्कुल इस वक्त बढ़िया काम आपने किया है। MCT 2025 सीजन 7 कल अंकुश सिंह, जगत सरकार, आशिक अली, रमीज, प्रथमेश राठौड़, उसके साथ योगेश पेंडकर और लोकेश चौहान, रंजीत फराटे, दिग्गज खिलाड़ी इस मंच पर, तारे जमीन पर सुरेश रैना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे। अब ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। MCT ओवर, अग्नि परीक्षा और भावेश पवार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दिल थाम कर बैठी है। ये कमाल का मैच होने वाला है। 18 गेंदें 30 रनों की जरूरत है। मुकाबला जीतने के लिए स्टैकन पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज संजय नाइक। खराब शॉट, ऑफ टाइम के काफी बार लेग ब्रेक गेंद है। अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश, विकेट कीपर केतन ने गेंद को गैदर किया और बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया। MCT ओवर की शुरुआत बिंदी गेंद के साथ हुई है। 70 गेंदें 30 रन चाहिए।
बिल्कुल शानदार शुरुआत इस एमसीटी ओवर में, एक कट होकर बाहर की तरफ। ओ, फिर से इस बार बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर को बीट करते हुए, फाइल लेकर फील्डर को बीट करते हुए, और 22 का इशारा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा अगर मुकाबला आखिरी गेंद पर चला गया तो 4 रन ये बिल्कुल सताएंगे टीम के लिए। ये अशोक सर 4 नहीं है, वो 8 रन। भावेश ने इससे पहले वो गलती की थी, अब केतन विकेट के पीछे है, उस पर केतन गेंदबाजी कर रहे थे। ये 8 रन जो है ना आपके लिए कांटे की तरफ चुभने वाले हैं। एमसीटी चौका, बल्लेबाजों के लिए रन चाहिए, वो चाहिए लेग बाय से आए, एक बार बाई से आए, लेकिन रन ना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी गेंद, और बल्लेबाज बैक टू द पेबलन, संजय नाइक बैक टू द पेबलन, और तालियां बज रही है, सिट्टियां बज रही है, प्रेशर कुकर की सिट्टी भी बजती भी। ओहो हो क्या मुकाबला है। महेश कोनाडकर साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है एमसीटी 2025 सीजन 7 लाजवाब खेल, और मैनब्रिम ग्रुप भी बहुत खुश हो जाएगा जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं, जिनके ऊपर रहेगी निगाहें, लेकिन समीकरण जिस तरह से बीच मैदान पर जो खेल चल रहा है, आपके पास 15 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी दिलचस्प है, और पिक्चर सुपर हिट है। अशोक जी, मैंने सुना है कि जो फिल्में है ना फ्राइडे को रिलीज हो जाती है, उसके बाद में सुपर हिट होती है, लेकिन एमसीटी में आज ही यहाँ पिक्चर रिलीज होगा और आज ही पिक्चर सुपर हिट होगा। तो 4,76,000 दर्शकों ने tenniscricket.in पर यह टूर्नामेंट एंजॉय किया है। सुरेश रैना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर लोग जो है ना घर में जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक काफी संख्या में खचाखच भरा हुआ मैदान है। कल लगभग 2:15 बजे भी काफी दर्शक थे अंतिम मैच को देखते हुए, और आज घड़ी 12:45 हो चुके हैं, लेकिन दर्शक काफी भारी संख्या में। इसी बीच और एक नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, लेफ्ट हैंडर बैटर है नागभूषण, और उनके सामने जो शुरू में भावेश पवार बहुत शानदार गेंदबाजी बीट किया इस गेंद पर, जो कि संजय नाइक, और उसके बाद एक बिल्कुल अच्छी गेंद पर बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई, और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। 15 गेंदों का खेल, बाकी 26 रन। ओ क्या गेंदबाजी हो रही है एमसीटी ओवर में, और एक बिंदी गेंद और एक डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कमाल का मैच है, और मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नागभूषण गांवकर, जिनका खेल देखने के लिए बहुत सारे समर्थक और उनके फ्रेंड आए हैं। नागभूषण स्पोक्सटाकर पर और गेंदबाजी करेंगे भावेश पवार। सीधे बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक है नागभूषण गांवकर के बल्ले से, यह लाजवाब चौका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। नागभूषण गावकरचे मला चाहते कुठे ते बघायचे, त्याचा फटका जर आवडला असेल ना तर एकदा नागभूषणसाठी टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। शानदार स्ट्रोक भावेश के खिलाफ, बेहतरीन टाइमिंग, गेट बॉर्डर के बाहर। अब समीकरण 14 गेंदों का खेल आना बाकी, 13 गेंदों का खेल है, आखिरी गेंद बहुत बढ़िया। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। 12 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल 22 रनों की जरूरत है। मैच समाप्त नहीं है, टीवी ऑन रखिए, और कमाल का मैच। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। 12 गेंदे 22 चाहिए और पिक्चर सुपर हिट चल रहा है, खास करके एमसीटी 2025 7वां संस्करण। 3 ओवर में 10 रन के साथ रन रेट था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ चुका है जो कि आखिरी 2 ओवर में। और देखना होगा फिलहाल ये ओवर आने वाला 7वां ओवर बहुत निर्णायक रहेगा। गेंदबाजी के फिर से एक बार चर्चा हो रही है कि किन के हाथों में गेंद दी जाए, क्योंकि आखिरी ओवर से पहले ये ओवर अच्छा होना चाहिए अबीर बाबा बारदेस क्रिकेट टीम के लिए। और सामने जो कि इस ओवर में कम से कम कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की कि 2 बड़े शॉट इस ओवर में लगा जाए, जो आखिरी ओवर में मैच थोड़ा सा आसान हो जाए मैदान पर। देखना होगा चर्चा के बाद किनके हाथों में गेंद सुपुर्द हो जाती है। और दोनों बल्लेबाज अब थोड़ा सा जमकर बल्लेबाजी कर रहे। बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं, और जिस तरह से देखिए tenniscricket.in पर आप अगर बने रहे हैं, अभी तक बढ़िया खेल हो रहा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 350 लोगों की जरूरत है, जो सब्सक्राइब करेंगे तो 21 लाख का जो मैजिकल फिगर है वो पूरा हो जाएगा, और हम सब के लिए प्राउड मोमेंट हो जाएगा। 350 का आंकड़ा, 350 लोग अगर ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो 21 लाख का एक मैजिकल फिगर पूरा होने वाला है।
नामदेव। अब 22 रनों की जरूरत, 12 गेंदों का खेलना बाकी। व्हाट अ मैच, फ्लाइंग स्लिप एक गली पॉइंट, उसके साथ स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। रिवर्सिव खेलना चाहते थे और गेंद अच्छी तरह बल्ले के ऊपर नहीं है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास। इस मुकाबले में मजा आएगा, दर्शक हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। मैच इंटरेस्टिंग मोड पर है। पसीने के साई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। जिस तरह से प्रशांत जी मुकाबला हो रहा है, मैच लगभग आखिरी गेंद पर समाप्त होगा, ये संकेत लग रहे हैं मैदान पर। 11 गेंदों का खेल, 21 रन। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए, नागभूषण के लिए राउंड विकेट। नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, लंबे कद के खिलाड़ी बड़ी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। और 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात, जो लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, और नामदेव बाणावलीकर अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा फिर से फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। मालूम है दोनों टीमों का एक एक रन बहुत कीमती है इस मैच में। 89 का टारगेट है सामने। 8 ओवर का मुकाबला, खेल जारी है 7वें। ओ ये गेंद बल्ले पर ऊपर लगी, और बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। और अंपायर का इशारा आ चुका है इस गेंद के लिए। ये फुलटॉस गेंद है या बीमर गेंद है, इसीलिए, लेकिन एक अच्छा कैच भी पकड़ा है। अगर सही जो कि गेंद होगी तो ये मौका रहेगा कैच का, और फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। कैच तो बिल्कुल अच्छा पकड़ा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट विकेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब चक्कर क्या ये गेंद नो बॉल है या नहीं, वो देखना है टीवी अंपायर को। कहानी इंटरेस्टिंग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं है, ये इतिहास रचने वाला मुकाबला है। और मैं तो समझता ये फाइनल का ट्रेलर बीच मैदान पर चल रहा है। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग टीवी। और इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। तालियां चिट्ठियां बजती भी सूरज शैना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। बल्लेबाज नागभूषण बैक टू द पेविलियन। सफलता मिली है नामदेव को। अब आंकड़े क्या बता रहे, एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला, रोचकता बरकरार इस प्रतियोगिता में। मैदान के अंदर सारे खिलाड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। वैसे 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट है। अब आपके पास 10 गेंदे हैं, 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला है। सिकंदर सुपर जायंट और अहिर बाबा 11 के बीच ये मुकाबला। भारतीय की टीम मैदान के अंदर है, और कल की कहानी भी बहुत यादगार रहेगी। अंकुर सिंह, जगत सरकार, आशिक अली, उसके साथ रमीज केरला से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, प्रथमेश राठौड़ मैन फ्रॉम सोलापुर, योगेश पेनकर लीजेंड खिलाड़ी है, लोकेश चौहान, रंजीत पराठे मैन फ्रॉम पुणे। मजा आएगा। कल भी तारे सितारे इस मंच के साथ जुड़ने वाले हैं। अब आपके पास 10 गेंदे, 21 रनों की जरूरत है। 7,000 दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं। 4,76,000 दर्शकों ने ये टूर्नामेंट एंजॉय किया है। अब 10 गेंदे 21। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। नवदीप गांवकर, और सर की तरफ गेंद को खेल दिया। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, और इस डबल के साथ आंकड़े बदलते हुए 9 गेंदों का खेल, 19 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। और ये क्रिकेट का ग्राउंड बिल्कुल गवाह बनेगा। इस बार वो कांटे की टक्कर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या मुकाबला है। 9 गेंदे और जीतने के लिए फिलहाल 19 रनों की जरूरत। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। विकेटों के बीच में भी बहुत अच्छी दौड़ देखने को मिल रही है। और नामदेव बाणावलीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है नवदीप गांवकर। 9 गेंदे 19 रन। ये गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद मिड स्टंप से ऊपर की तरफ निकली, ऑफ साइड पर कवर करके जो कि खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा हो चुका है, वाइड बॉल के लिए बिल्कुल देखा जाएगा। और अगर वाइड बॉल हुआ तो एक सिंगल बढ़ेगा, एक गेंद बढ़ेगी, लेकिन देखा जाएगा फिलहाल ये इस तीसरे अंपायर के साथ। टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं। अंपायर ने बिल्कुल कहा था ये बहुत अच्छी गेंद है, फेड डिलीवरी, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज को लग रहा है
नवोदित की लग रहा है कि ये बॉल वाइड बॉल होना चाहिए। टीवी अंपायर क्या कहेंगे वो देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग मैच है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। एमसीटी बट 2025 पिछले 3 मुकाबले रोचक रहे, पिछले 3 मुकाबले पैसा वसूल रहे, पिछले 3 मुकाबले में जिसके पास नाखून है ना, क्या उनके पास में बचे नाखून? नहीं बचे हैं, नहीं बचे नाखून, नाखून चबाने वाला मैच है। देखिए अभी भी मैं देख रहा हूं वहां से जो दर्शक है वो नाखून चबा रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं, नाखून चबाने वाला मैच है मैदान के अंदर। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा, टीवी अंपायर क्या डिसीजन देने वाले हैं, वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए नामदेव, बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त नवदीप मैदान के अंदर है, युवा खिलाड़ी, और डिसीजन पेंडिंग एमसीटी 2025 रोचकता बरकरार। और अब टीवी अंपायर क्या डिसीजन देने वाले हैं। टिक 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 टिक, इट्स अ फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंदबाज और तालियां बज रही है, मैदान के चारों ओर से तालियां बढ़ती हुई। महेश कोनाडकर टूर्नामेंट के आयोजन करता, टूर्नामेंट का आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा दिन, कल भी कहानी यादगार होगी। गेंदबाजी करने के लिए नामदेव, सामने बल्लेबाज नवदीप गांवकर। 8 गेंद में 19, इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। 7 गेंद में 18 रनों की जरूरत है। केतन मात्रे डायरेक्ट करना चाह रहे थे, देखा कि क्रीज में वापस आए हैं तो अपने आप को रोका। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच मैदान पर अब आपके पास 7 गेंदें हैं और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। सामने कांच का बंगला हो, सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने नामदेव हो, मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपके पास गेंदे हैं 7, 18 रनों की जरूरत है। नामदेव को एक अच्छी गेंद डालनी है, ज्यादा चर्चा ना करें क्योंकि जब ज्यादा चर्चा करेंगे तो खर्चे भी होगा। वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शकों के दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। 7 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत है। फ्लैग स्लिप, गली पर खिलाड़ी, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर एक रंगा पर खिलाड़ी तैनात। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, इस गेंद पर किसी भी तरह से बल्लेबाज को बड़ा शॉट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आखिरी ओवर में ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। इस बार सामने खेला गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर अमृत वेरलेकर आराम के साथ उस कैच को तब्दील करते हुए, और अब मैच आ चुका है आखिरी ओवर पर, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 17 रन, 18 रन, मैच को जीतने के लिए 18 रन अभी भी चाहिए। मुकाबला बिल्कुल अभी भी जारी है, खेल है। बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी कमेंट्री बॉक्स में से, क्योंकि ऐसे मुकाबले हुए हैं 6 गेंदों में 6 रन नहीं बने, कभी कभी 20-22 रन भी बन चुके हैं। और न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए वीरेश एजीएम। कमाल का मैच है। और अशोक नाइक, आप ये देखना चाह रहे थे कि आप पूरी तरह से दर्शक और समर्थक फोकस है वो देखना चाहते थे, और जब आपने बोला कि 6 गेंद में 17 चाहिए, वहां से आवाज आई 17 18 चाहिए, और पूरी तरह से ये सारे दर्शक है ना इस मैच के अंदर घुस गए हैं। कमाल का मैच। तसं आपण बघितलं तर थंडी पडले पण मॅच गरम आहे, मैदानावरती 6 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता, 21 लाखचा आकडा पूर्ण करण्याकरता तुमची मदत लागणार आहे। फक्त 350 प्रेक्षकांनी, 350 क्रिकेटच्या या ठिकाणी शौकीनांनी जर सबस्क्राईब केलं तर tenniscricket.in आजच इथेच 21 लाखाचा आकडा पूर्ण करू शकते। आपण हा चॅनलला सबस्क्राईब करा। भारतातल्या सर्व व्यावसायिक स्पर्धा तुम्हाला पाहिजे असतील तर आज हा परिवार मोठा होतोय, तुमच्यामुळेच होतो आहे। संतोष नाणेकर, गौरव सावंत बीच मैदान पर खेल कमाल का 6 गेंदों में, और पिछले मैच में 6 गेंदों में जब 18 रनों की जरूरत थी तब केतन मात्रे आए थे गेंदबाजी करने के लिए। अब ये फिलहाल केतन मात्रे आए हैं और इनके पास 39 बाइक, 6 4 व्हीलर है। वैसे ये मैदान के अंदर होते हैं तो ड्राइविंग सीट पर होते हैं, इनकी गाड़ी रंप पर पहुंचाते हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज स्वप्नेश के ऊपर सबकी निगाहें हैं। नवदीप के ऊपर भी बस सबकी निगाहें हैं। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, 6 गेंदों में जीतने के लिए भी चाहिए 18 रन। दर्शक घर में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों जाएंगे? क्योंकि आज के पूरे दिन की कहानी देख के जाएंगे, और ये कल भी इस तरह का सपोर्ट आपने दिया था, यह आपका प्यार है। और जबरदस्त 7,000 से ज्यादा दर्शक इस वक्त tenniscricket.in पर यह मुकाबला देख रहे हैं। ये बनने वाले जैसे जैसे एक एक गेंद आगे जाएगी बेहतर खेल हो जाएगा, रोचकता बरकरार रहेगी, तो दर्शकों की संख्या भी बढ़ने वाली है। केतन ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी है और गेंद के नीचे खिलाड़ी। नवदीप बैक टू द पैवेलियन, केतन मात्रे
इस बार विकेट प्राप्त करते हुए नामदेव ने शानदार कैच का दबाव बढ़ता हुआ, अशोक जी दबाव बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, काठे की टक्कर मैदान के अंदर है। 5 गेंद में 8 रनों की जरूरत। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर और गांवकर साहब चले गए। गांवकर साहब मैदान के बाहर, टप्पा खाते के उछाल था, ऑन साइड पर लॉक और बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं था और गेंद बहुत ऊपर चली गई थी। नामदेव भाई वाह, कहां कैच छोड़ने वाले हैं, बेहतरीन कैच। 5 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। केतन की शुरुआत इस ओवर में बेहतरीन हुई है, लेकिन अब आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, और पिछले 3 मैच प्रशांत जी मैं बात करूंगा तीनों मैचों की, तो गेंदबाजों को बोलबाला रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी रहे सभी तीनों मैचों के दौरान। और देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर, प्रजेश उर्फ विक्की नाइक नए बल्लेबाज मैदान पर। पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए केतन मात्रे अच्छा कैच पकड़ा। नामदेव बाणावलीकर ने सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थोड़ा सा जो कि बिल्कुल रखा है, मेरे ख्याल से बल्लेबाज को उनको आना चाहिए था स्ट्राइक पर, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है। फिलहाल प्रजेश उर्फ विक्की नाइक आ चुके सामने स्ट्राइक पर और वो सामना करेंगे केतन के अगली गेंद का। 5 गेंदों का खेल और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 18 रन। दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार पर एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ केतन मात्रे इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 5 गेंदे और 18 रन। इस बार ऑन द राइज खेला, सिंगल तो बने गया, क्या दूसरे रन की कोशिश हुई? जी नहीं, बिल्कुल पहला रन पूरा किया, मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 4 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। कमाल का मैच है और जबरदस्त गेंदबाजी फिलहाल केतन महात्रे द्वारा। आपके पास यहाँ से वो 4 गेंदें शेष है, 17 रनों की जरूरत है। जीवन की निशानी प्रगति, प्रगति रह गई निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय। बल्लेबाज स्ट्राइक करने पर बल्लेबाजी करने के लिए वीरेश ऑन स्ट्राइक, केतन मात्रे तैयार, फ्रैंक टिप गली पॉइंट, इस का बरनांग आप इस ओवर की अगली गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, क्या ओ सही निशाना में नहीं देखने वाली बात है। केतन को लग रहा है कि मैंने मेरा काम किया है, लेकिन अंपायर की सहमति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। 3 गेंदे 16 रनों की जरूरत है, तो एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए मैच में कमबैक करने के लिए। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े स्ट्रोक चाहिए, तब जाकर और मजा आएगा। इस मैच में केतन मात्रे ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन ये गेंद तय करेगी कि क्या मैच और रोचक बनने वाला है। बिल्कुल, इस गेंद पर फैसला हो जाएगा। अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं रहा तो आने वाली गेंद पर। फुल टॉस गेंद, एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर सिर्फ सिंगल बनता हुआ। 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में और सिर्फ अंतिम ओवर और अंतिम ओवर के 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में 15 रन। तो 2 छक्के लगे तो भी बिल्कुल मुश्किल रहेगा अब मैच में, लेकिन नो बॉल सता सकता है मैदान पर। फिलहाल देखना होगा, 2 गेंदे और 15 रन। शानदार गेंदबाजी पिछले मैच में की थी केतन मात्रे ने। अभी बाबा बारदेश की टीम इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ऑन साइड पर पुल किया, खूबसूरत स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी इस गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। एम सिटी चौका। अब आखिरी गेंद का खेल, 6 गेंदों का खेल आना बाकी है और 6 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल 11 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक है और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से अबीर बाबा भारतीय टीम ने अपने नाम पर कर दिया है। और ये फाइनल का मैच नहीं दोस्तों, ये फाइनल का मैच नहीं है। लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में, कमाल की गेंदबाजी और उसके साथ जबरदस्त बल्लेबाजी रही है। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा थोड़ी देर के बाद। 13 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के इनके बल्ले से आए, 4 लाजवाब चौके और ये सेलिब्रेशन मोमेंट। जो दर्शक tenniscricket.in पर देख रहे हैं उनको लगेगा ये फाइनल का मैच है। दोस्तों फाइनल का मैच नहीं है, फाइनल के लिए 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कल डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आज अबीर बाबा बारदेश टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो राजू जी थैंक यू सो मच, जो हमारे ऑफिशियल है उनके बाद सारे टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया और हमारे स्कोरर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं मिस्टर निखिल और हमारे डिजिटल स्कोरर है मिस्टर
सूरज। और आज के दिन में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड थोड़ी देर के बाद दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में तुषार, समीर सर, अशोक नायक, इनकी आवाज आपने सुनी है। कल भी ये कहानी, बहुत दिलचस्प कहानी लेके हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। tenniscricket.in ला अखिल, उद्या तुम्ही आमच्याबरोबर जॉईन होणार आहात, कॉम्प्युटर या नावाने ओळखले जातात। आणि tenniscricket.in ला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर निश्चितच आपण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। संजू कनोजिया आपण जर बघितलं तर काल त्यानं जबरदस्त कामगिरी केली होती आणि 92 धावा, 180चा स्ट्राईक रेट। आज टॉपवरती आपण बघितलं तर खेळाडू आहे ओंकार केडी, 67 धावा, 4 मॅचच्या माध्यमातून त्यानं आज जबरदस्त कामगिरी करत प्रभावित केलेला आहे। त्याचबरोबर या टॉप 10 मध्ये आपण बघितलं तर आणखीन काही खेळाडू आहेत। ओंकारचा खेळ दमदार राहिलेला आहे। तर आता मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल आणि प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण या ठिकाणी अगदी थोड्याच वेळात जाणार आहोत।